Hello, someone are you there? Yes, sir. Am I audible, guys? Sir, recording, cloud recording. Hello, Sir. hello, Yes, sir. hello. Am I audible? Yes, sir. Sir. Yes, sir. हेलो गाइस, आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. मेरे को नहीं आ रही। हेलो, अभी ठीक है? Yes, sir. Sir. That's good. Amal, are we good? Okay. ठीक है, Tamal, you can leave. I can end it. One thing, what to do with ending? Like just stop the streaming, right? Yes, sir. Yeah. Okay. Sure. Thank you. You can leave. Yeah. Public. So excited. Hello. Am I audible? Yes, sir. 6 hours we are planning. It will go to seven. Also depends on your energy and my energy. किसी को नींद तो नहीं आ रही ना? हेलो, आर यू फीलिंग स्लीपी पब्लिक? No, sir. चलिए शुरू करते हैं. सो द टॉपिक्स फॉर टुडे विल बी people's most favorite momentum transfer, questions on thermal processing, questions on heat exchanger, Heat transfer. heat transfer ले लो. Okay, then most favorite for everyone. So some change is there. We'll start like this. ठीक है? Yes, sir. चलिए शुरू करते हैं. So we'll start with another important topic, that is food additives. पढ़ना है पब्लिक? Yes, sir. चलो, Yes, food additives. ओके, अगर आज का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, if today's your response is very good in today's night class, we'll do the same on tomorrow. चाहिए ना? हाँ ठीक है. sir. Yes, So sir. how good you will be there in the class today whole session, that will be impacting tomorrow session. ओके, ठीक है. चलिए, food additives. देखो, what is the difference between food additives versus general ingredient? बोलिए. आराम से पढ़ाऊंगा, 2 घंटे पढ़ाऊंगा, लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा. ठीक है? क्लियर पब्लिक? Yes, sir. Yeah, tell me what is food additive.
Hello. Hello, am I audible? सर Yes. बहुत आवाज बहुत ब्रेक हो रही है हाँ? सर यार आपकी आवाज बहुत ब्रेक ब्रेक। अभी ठीक है? यस सर यस सर। ओके, तो एक सेकंड. सूरज, आर यू इन द कॉल? डिड यू जॉइन? नो, चल ठीक है. फाइन. फूड एडिटिव्स, ठीक है. मैं ऑडिबल ना क्लियरली नाउ? यस सर। यस सर ठीक है, चलो गुड. So food additives. So food additives and versus ingredients. General ingredients like let's say biscuit बना रहे तो wheat हो गया, sugar हो गया, okay, salt. Then something else like let's say about some cashew, okay, etc. What about food additives? So food additives we have flavor enhancer if you are using, okay, fine. Flavor enhancer we are not using in biscuit, but generally I am giving an example. Okay, flavor enhancer, stabilizer, then any kind of flavor and like we are adding like let's say elaichi flavor we are adding in the biscuit. Okay, elaichi type of biscuits are there, right? Are hi, Anna. Correct. यस सर यस So elaichi flavor you are adding sometimes butter flavor. Okay, so butter flavor is diacetyl, correct? यस सर। यस सर So many things are there. That's the basic difference between food additives and ingredients. अब एक ये आसान भाषा में बताया. Let's talk technically. Ingredients which does not have any standard limit. Okay. कभी देखा है क्या फसाई पे उसमें लिखा हुआ है इन एनी बिस्किट यू कैन यूज ओनली 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर फॉर सर्टेन थिंग्स? नो, देयर इज नो सच थिंग. दैट बेस्ड ऑन रेसिपी. रेसिपी पे डिपेंड करता है, करेक्ट? सो इंग्रेडिएंट्स है और रेसिपी, करेक्ट और नॉट गाइस? यस Yes, सर sir. Whereas food additives they have standard limits, okay, which are set by the government or the standard authority. Let's say for India FSSAI, US that is US FDA, ठीक है, etc etc. Okay, so mota mota food additives is like particularly certain things which are needed in food to enhance, okay, mark my words, okay, to enhance the characteristics of food. For example, stability, texture, color, ठीक है, appearance. अब कुछ लोग बोलेंगे सर appearance और color both are some difference is there, okay, viscosity, ठीक है, etc. cool, clear है? यस अरे हाँ, सर यस सर यस सर। चलिए. now this is all about, so there are various categories of food additives, ठीक है, बहुत सारी कैटेगरी. एग्जाम्पल, प्रिजर्वेटिव, ठीक है, ठीक है, स्टेबलाइजर, एसिडुलेंट्स, ठीक है, देन अंडर दिस कम्स द एंटीमाइक्रोबियल, ठीक है, देन कम्स हियर थिकनेस. बोलते जाओ क्या क्या हो सकता है. इमल्सिफायर्स, देन फ्लेवर एंड्स, एंटी केकिंग एजेंट करेक्ट, सर एंड डिलेटिंग एजेंट्स एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स। हाँ, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स। डिफॉर्मिंग, ठीक है. अंडर प्रिजर्वेटिव कैन आई से लाइक एंटी फंजाई or the one which will prevent the fungus to grow, correct? यस सर In
अदर we can say mold inhibitors. ठीक है, इसी को मोल्ड इनहिबिटर्स बोलते हैं, करेक्ट और नॉट? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Then comes your thickener stable Antioxidants. antioxidants are Sir, there. chelating agents will also come under this. So bulking agent. Chelating agents. So बहुत सारे agents हैं. Fine. Yes. Numerous things are there. So each categories are, देखो बहुत अब कुछ चीजें हैं like certain things which will be there in your antioxidant as well as chelating agents. Let's say EDTA is a very good example of both. Clear? देखो EDTA is Yes. a very good agent as well as they are having very good antioxidant power. Correct? ठीक है? Yes, sir. ठीक है. Now they are generally ये एक ही फैमिली के लोग हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंड चैरिटी, दैट विल सी. सो दिस ऑल पीपल, दिस ऑल गाइस, ओके, ये सारे एक एक बंदा, दे आर हैविंग सम categories, okay, these are all categories and they are assigned with some numbers known as e number. ठीक है, e number. So gate के perspective में there is not much importance for this, okay, not much. But if anyone who is seeing on YouTube, guys, for you, if you are preparing for FSO exams, etc., those e numbers will be important. Okay, chaliye. Yes, sir. Yeah. Now we will talk about lots of things regarding food additives. So I want everyone to recall what I have taught you in my processing principle class. Yes, sir. Suraj, are you there? Hello. Suraj, no man. ठीक है, चलिए. Just give me 1 sec. चलिए. Okay, so preservatives. Under preservative, I told you certain things. One is for killing, another is for inhibiting. अरे हाँ या ना? हाँ सर. Yes, sir. Okay. Yes, sir. बात की थी हमने बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, करेक्ट? Yes, अरे sir. Yes, sir. talked about it, right? Yes, sir. चलिए, that's good. So we will now head towards the preservatives. ठीक है. So let's talk about preservatives. Preservatives. So from the term we can see it is the one which is used to preserve okay, to preserve, used to preserve the food for longer duration. अब this is general thing, even class 5 or class 6 people also. We have to talk about certain which is technique. So it is used to keep all the important characteristics of food intact. ठीक है, मतलब जैसे let's say like the pH of the food is something 6.2, talking about milk, okay, so or any milk based product, okay, pH or something, any food which is in general their standard pH is 6.2, it should be there, okay. But if microbial spillage or any kind of enzymatic reaction कुछ भी हो रहा है, the pH will goes down, let's say it coming to 5.6. So is the property changed or not? Does it changed? Yes, Yes, sir. sir. What, let's say the viscosity was something X, okay, but due to some enzymatic action or something, कुछ भी, okay, means mechanical damage or anything, कुछ भी, any kind of like action like preservatives, it's a microbial action, कुछ भी हुआ,
it changes the viscosity. Let's say milk की बात कर रहे हैं, you know, surface roughening happens. अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes. So it's a changes in the viscosity at top level and something at the entire level. Okay, that is because of which bacteria, guys? Remember, alkaligens, viscolactis. अरे याद है? हाँ sir. Yes. Yes, sir. अरे correct or not? हाँ sir. Yes, sir. अरे Correct. ठीक है, roughness is there. So some changes is taking place and it's harming the characteristics of the food. So that's why we are using preservative to prevent those problems and keep the food characteristics intact. अरे समझ में आया पब्लिक? Yes, sir. Yes, sir. इंटरव्यू में आपने बोला कि टू प्रिजर्व द फूड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, बच्चा बोलेगा यार टेल समथिंग व्हिच द इंटरव्यूअर आल्सो लिसंस एंड फील हैप्पी, ओके दिस गाय नो समथिंग. अरे क्लियर है? फंडा क्लियर हुआ पब्लिक? Yes, sir. हाँ चलिए, sir. एंड दैट इज द मेन थिंग अबाउट प्रिजर्वेटिव ऑडिटिंग. तो अब देखो बहुत सारी चीजें हैं. प्रिजर्वेटिव दो टाइप के होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल. सो कमिंग टू, यार तुम लोगों में जान कम लग रही है तो लोगों को नींद आ रही है, लोग बोर हो रहे हैं. ठीक है, क्लास 1. मेरी एनर्जी कम है क्या? No, sir. No, sir. And why yours is less? ठीक है, चलिए पूरी नाइट जागना है तो अभी एनर्जी बचा के रखिए. इट्स अ मैराथन, ओके, आई एम सेइंग इट्स अ मैराथन. इट्स नॉट 400 मीटर रेस. ओके, सो जगिए अच्छे से काम. वेन एवर यू नीड ब्रेक टेल मी, ओके गाइस? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so let's see, let's 12 23 40. We'll take break at 12:30. Fine. Yes, Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. But those not will be a coffee break or tea break. It's a question break. Okay, छोड़ने वाला तो यूं भी नहीं है. ठीक है, चलिए क्लास 1 क्लास 2. तो देयर आर टू क्लासेस आर देयर. ओके, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव. क्लास 1 मतलब भाई कोई लिमिट नहीं. ठीक है, इन और फॉर द वन हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी, देयर इज नो लिमिट. ओके, एंड दिस इज लाइक औकात में रहे. ठीक है, करेक्ट और नॉट? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और फॉर इंग्लिश गाइस, स्टे इन योर लिमिट ब्रो. नाउ सी क्लास 1 क्लास 2 क्लास. ठीक है, क्लास 1. सो व्हाट आर इन क्लास 1 गाइस? कैन यू टेल मी? Salt, sugar, Salt, sugar. species, honey, Natural preservative. Vinegar. honey. Hey, don't say natural preservative guys. अभी मैं कुछ बोलूंगा तो फिर घबरा जाओगे. डू यू नो अबाउट लैक्टोफेरिन? yes, sir. Yes, sir. Sir. नेचुरल बायोएक्टिव प्रिजर्वेटिव है. करेक्ट और नॉट? हाँ sir. Yes, sir. certain limit above that, so don't say natural preservative. ठीक है, okay. Okay, sir. Honey, then comes your oil, vinegar. ठीक है, anything else? बोलिए बोलिए बोलिए. Dextrose, Spices, dextrose guys, दुबे जी, it is coming into sugar only. ठीक है, yes, sir. dextrose में क्या होता है आपका? सुगर ही है ना? Is it Yes, pure? sir. Type. Yes, sir. ठीक है, spices, anything else? Turmeric. बोलिए. अरे बोलो 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 जल्दी जल्दी Turmeric. बोलो. डाउट है कुछ पूछ लो अभी. एनी डाउट गाइस? बोलिए. No, sir. No, sir. No doubt. ऑल क्लियर? एनीथिंग एल्स? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नाउ Sir, एक doubt. बोलो बोलो पूछो, क्या डाउट है तुम? Sir, natural आपने मना क्यों किया उसमें? नेचुरल, देखो सर्टन थिंग्स आर देयर व्हिच आर टेकन फ्रॉम द नेचुरल बट दे आर केप्ट अंडर क्लास 2 प्रिजर्वेटिव. ठीक है, अब बताता हूँ मैं रीजंस. ओके, हेलो. Okay, sir. Yes, sir.
Yeah, so I just gave a beautiful example about lactoferrin. Okay, that is one thing. Okay, then other very important things comes like, let's say, for your example, like certain microbial based, okay, microbes based. So, although it's not made in lab or anything, lactoferrin is one. Then you can say like chitosan. Chitosan के बारे में सुना है guys? Yes, sir. Yes, sir. Expected from where? Marine, ठीक है, marine products like fish or some what to say, shellfish. Shellfish, sir. Okay, so it's a naturally extracted, correct or not? हाँ sir. Yes, sir. फिर एलपीएस हो गया आपका, लिपोपोलिस लैक्टोपेरोक्सीडेज सिस्टम्स। तो दोस आर देयर, बहुत सारी चीजें हैं जो एंजाइम आपके मिल्क के एंजाइम्स में होते हैं, मिल्क में होता है, सलाइवा में होता है, बहुत सारी चीजें। सो दे आर नेचुरल एंड दे हैव सर्टेन लिमिट्स टू यूज। ओके, यू कांट डायरेक्टली यूज एंड के बहुत अमाउंट में डाल दिया, नहीं वो नहीं होगा। तो क्लास 1 मतलब बोला ना लिमिट है, क्लास 2 में लिमिट, क्लास 1 में कोई लिमिट नहीं है, बट क्लास 2 में देयर इज अ लिमिट एंड दिस थिंग शुड बी केप्ट अंडर सम लिमिट। ठीक है, अदरवाइज इट विल अफेक्ट द ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. आयुष क्लियर? हाँ सर. ठीक है, चलिए गाइस, कोई भी बोल रहा है थोड़ा तेज बोले। हाँ चलिए, ठीक है। सॉल्ट, शुगर, हनी, ऑयल, विनेगर, स्पाइसेस। ओके, नाउ एक एक की बात करेंगे। ठीक है, एक एक को आड़े हाथ लेना। सॉल्ट भाई कितना परसेंटेज पे ये प्रिजर्वेटिव एक्शन करेगा? सर 12.5%। अरे हाँ या ना? Yes, sir. सर शुगर 60%। 65%. हाँ, 60 to 65% 65. आपको प्रिजर्वेटिव एक्शन देगा। करेक्ट। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक विनेगर, व्हाट परसेंटेज ऑफ 4%। चलो क्वेश्चन बोलने के पहले आंसर दे दिए। ठीक है, करेक्ट। मतलब इन लोगों को एंटी माइक्रोबियल वाली क्लास याद है। ठीक है, करेक्ट। नाउ हेलो, टेल Yes, मी sir. स्पाइसेस में ऐसा क्या होता है कि वो प्रिजर्वेटिव एक्शन देता है? क्वेश्चन कम्स देयर नाउ। Sir, for example, in Phenol. turmeric, it has antimicrobial properties. ओके, तो नेक्स्ट। phenolic compound होता है, sir. फेनोलिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी भी है सर। एंटी इन्फ्लेमेशन, इट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। माइक्रोबियल बेसिस पे क्या फायदा? रिड्यूस द माइक्रोबियल ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग द एसिड कंटेंट, मैंने पीएच एक्चुअली। करेक्ट। एनीवन एल्स? You guys forgot about this also. Although it is not related to this current topic, but it has antioxidant power also. Correct or not? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, करिए। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक। ठीक है, हेलो। Yes, sir. एक सेकेंड, लेट मी रिप्लाई टू सूरज। ठीक है। क्लास 1 में कोई प्रॉब्लम है गाइस? एनी प्रॉब्लम विद द क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स? No, sir. यस, नो ना? ठीक है। नहीं sir. अब क्लास 2 गेम यही चेंज होगा। ठीक है, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव, इट्स यूसेज वगैरह बहुत सारी चीजें। अब देखो, पहले शुगर के पहले क्लास 1 के लिए बात करते हैं। तो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव एग्जांपल्स। ओके, शुगर, वेयर इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। सर हम लोग शुगर कोटेड कैंडीज की बात करते हैं, सर जैम एंड जेली की बात करते हैं। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, देन sir. एनीवन एल्स, एनीथिंग? बोलिए। मार्मलेड, can I say it's a very important preservative in F&B, food and vegetable industry? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What about salt? So salt हम लोग यूज करते हैं डेयरी में। अब डेयरी में कहा गाइस?
बटर, butter, याद है? butter, क्योंकि हम लोग 2.5 ग्राम डाल रहे हैं, but that 2.5 ग्राम create a concentration of 12.5% plus, which act as a preservative in hot butter. Clear है? Yes, sir. yes, अरे sir, याद है ना क्लास प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स? कैन यू करेक्ट? ठीक yes, है. sir, Alright. Then what about pickle? Correct. yes, sir. Then Used for brining, brined fruits and vegetables. Correct. yes, sir. Etc. बहुत सारी चीजें. Now comes the vinegar. Hello. I'm in Yes, sir. class. चलिए. So vinegar is used by guys in creating acid or lowering the pH. For example, the pickles. ठीक है. Spices, it's in various snacking product. ठीक है. Oil, so oil भी हम लोग पिकल में डालते हैं ना? अरे हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes. yes, sir, Pickle has multiple levels storage thing. Okay, like salt, spices, oil, vinegar, and in that the major one is salt and oil. अरे हाँ या ना? And spices. Correct. Yes, sir. चल जी, दैट्स वेरी गुड. ठीक है. अब हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बात. अब हम लोग प्रिजर्वेटिव्स में जाएंगे. दैट इज योर क्लास 2 प्रिजर्वेटिव. अब इसमें भी गेम खेला जाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोग गाइस, डू यू रिमेम्बर एवरीथिंग अबाउट एंटी माइक्रोबियल्स? नहीं? चलो एक बार रिवाइज करो. ठीक है. नाउ एंटी माइक्रोबियल्स, you remember sulfides and sulfur dioxides, nitrites. अरे पता है कि भूल गए? yes, sir, Yes, sir. ठीक है. अब देखो, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड्स, दे आर वेरी वेरी मच यूज्ड इन वेयर सर? एफ&बी इंडस्ट्री. कहाँ हम लोग डालते हैं? केएमएस के फ्रूट जूसेस. ठीक है. देन जैम जेली. ठीक है. देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रोडक्ट है. मोटा मोटा एफ&बी इंडस्ट्री में बहुत. अब पब्लिक पूछेगा व्हाट इज केएमएस? सर पोटासियम potassium Metasulfide. metabisulfite, मेटाबाइसल्फाइड. क्लियर? नाउ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड. सर बहुत ज्यादा यूज होता है कहाँ? सर मीट इंडस्ट्री में. meat में, फॉर व्हाट सर? फॉर व्हाट? क्यूरिंग. curing, Ring. Yes, sir. Curing. Okay. And what is curing, sir? It is a process of what? Tenderization. Preserving color of meat. The second benefit of it is tenderization and preservation, or let's say preservation की जगह डालते हैं हम लोग inhibitory actions against what guys? Against Clostridium. Botulinum. botulinum, अरे याद है, भूल गए? याद है sir, ठीक है. चलिए, दैट्स ऑल अबाउट नाइट्राइट्स. बहुत सारी चीजें हम लोग आगे एक एक करके सारी बात करते हैं. लेट्स गो टू द एस ग्रंथ. ओके. सबका एस ग्रंथ पढ़िए पब्लिक. Yes, sir. चलिए देख, ये रहा हमारा एस ग्रंथ, और पेन पकड़ लेते हैं ये वाला. ठीक है. देखो यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट प्रिवेंटिंग ब्राउनिंग ऑफ कट्स. ओके. अब इसके बारे में आगे और देखेंगे. एस्कॉर्बिक एसिड इज ओके, सॉरी इट्स एंटीऑक्सीडेंट. यू टू गो हियर. ठीक है. नाउ एंटी माइक्रोबियल्स, सल्फर डाइऑक्साइड अभी हम लोग बात किए. इनहिबिट नॉन ब्राउनिंग एंजाइमेटिक एक्शन वगैरह वगैरह. वेयर इट इज यूज्ड इन फूड एंड वेजिटेबल्स.
now this is everything is fine. Okay, they अब देखो यहाँ जो last point है ना guys, this last point is very very important. Okay, so SO2 means sulfur dioxide in acid media. Okay, acidic media, they are bactericidal and bacteriostatic. Okay, now fine, that is okay. Now very important point is this, it is effective against what? Okay, it is effective against what? It is effective against gram positive bacteria, especially in fruits and vegetables, beers, okay, meat, wheat flour, etc. But very important, what I said, very very important in where, guys? This fruits and vegetables. Are And clear? vegetable. Yes, sir, clear है. Now nitrate and nitrate salts. अभी just बात की हम लोग कि where it is used, it's used for this disease. Main is for what? Meat curing mixture, maintaining color. हम लोग पहले बात की थी ना कलर प्रिजर्वेशन. अरे हाँ या ना? Then Yes, inhibition sir. of microbes. Which microbes, sir? हम लोग बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम के प्रिवेंशन के लिए. In where canned and cured meat. जनरल मीट की बात नहीं करेंगे. कैंड एंड क्योर्ड मीट, अगर कोई मीट है, अगर उसके हम लोग क्यूरिंग करेंगे नाइट्राइट के साथ में, ओके, एंड वी कैन इट. Okay, so after canning process, if the microbes are there, it will be prevented because of this nitrite and nitrate salts. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो नाउ अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा. सर ग्राम, आप क्लोस्ट्रिडिया की बात की, सो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम इज व्हाट सर? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. सर ग्राम पॉजिटिव. अरे हाँ या ना? Gram. हाँ, sir. Yes, sir. नाइट्राइट एंड नाइट्रेट salts आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रेट्स बोथ आर एक्टिव अगेंस्ट व्हाट? ग्राम पॉजिटिव. क्लियर है? Gram positive. Yes, sir. चलिए क्विकली नाउ लेट्स गो टू द एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड सर हमारा बेसिक इज अ क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, दैट इज अ विनेगर, 4%. अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है. नाउ हमको ये पता है कि इट्स क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, बट इट इज एक्टिव अगेंस्ट whom? और क्या करेगा? सो दैट्स व्हाई इट्स एंटी माइक्रोबैक्टीरियल इंक्रीज पीएच. ठीक है, द pH decreases, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी डिक्रीजेस. ठीक है, fine, that is not a big point for us. For us the main important point is the third number. ठीक है, prevent droppiness and mold growth sometimes as a flavor. So sometimes as a flavor is fine, that is different thing, because it is coming in class 1, that means it's a kind of ingredient type of thing. But prevent droppiness and mold growth. So अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक पॉइंट बात कर था, कैरेक्टरिस्टिक्स इनटेक. अरे हाँ या ना? So it is satisfying our need. Does it satisfy our need? अरे हाँ या sir. ना? Yes, और sir. मतलब प्रिजर्वेटिव का नीड क्या है? टू प्रिवेंट दी लॉस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड एंड कीप इट इंटैक्ट. अरे हाँ या ना? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इट इज सेटिस्फाइंग. यस. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सर, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे व्हेन वी आर द ब्लैक व्हाइट बॉडी. ठीक है. प्रोपियोनिक बैक्टीरिया, प्रोपियोनिक एसिड. नाउ प्रोपियोनिक एसिड इज व्हेन यू टॉक अबाउट दिस. अभी हम लोगों ने चीज नहीं पढ़ा है. भाई चीज नहीं पढ़ा ना डेयरी में, के पढ़ लिया था उस दिन? नहीं, No, sir, नहीं sir. पढ़ा अभी. ठीक है. तो प्रोपियोनिक बैक्टीरिया, हम लोग प्रोपियोनिक एसिड का एक फ्लेवर बनता है. इन वेयर गाइस, डू यू रिमेम्बर, जिन लोगों ने अगर एज ग्रांड पढ़ लिया होगा, स्विस चीज. अरे Yes, हाँ यार, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसमें जो आइस बनाता है, ब्लू आई, ठीक है, आइस, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस गर्ल, दिस तो वो प्रोपियोनिक. प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी जो होता है ना. हाँ, करेक्ट. सो अब देखो प्रोपियोनिक एसिड की बात करते हैं, ठीक है. देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, नेचुरल डॉक्टर इन स्विस दिस प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है. ओके. नाउ this grows naturally in the cheese and act as a very good preservative in the Swiss cheese. Okay, so prevent droppiness and active against Bacillus mesentericus. अब guys, Bacillus is what sir? Gram positive. अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब Bacillus is gram positive, droppiness. तो अभी हम लोग तीन इंपॉर्टेंट पढ़े हैं. ओके, एन एस एंड पी. ठीक है, all three are against gram positive. ठीक है, cool. Let's go further. एक सेकेंड ना.
चलो कंटिन्यू. सो प्रोपियोनिक बैक्टीरिया एसिड हो गया, ठीक है. नाउ सॉर्बिक एसिड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और ये पॉइंट अभी गेट में लिख लो, कहीं ना कहीं बैठेगा, इसका रिलेशन कहीं पे कहीं है. ओके, सो sorbic acid and other medium chain fatty acids. So medium chain fatty acids are very important. medium chain fatty acids के बारे में अब देखो ध्यान से. okay? short chain fatty acids और medium chain fatty acids. Okay? Now, do you guys remember about milk? Do you guys remember about milk? मैंने क्या बोला था? Those people means milk and meat, they have higher amount of what? SFA. Sir, what is SFA? Sir, saturated fatty acid. Saturated. Correct or not? Yes, sir. Yes. So those short chain fatty acid, let's say like OPMS, यही था ना हमारा मिल्क में. Yes, sir. Yes, sir. तो PMS, अब हम लोगों का क्या कैरेक्टर था? BCC क्लेम. Claim pass. Claim pass. ठीक है, पास. ओके, सो यहाँ पे आपका OPMS, दिस आर नियरली टू द 18 रेंजेस. अरे हाँ या ना? 18 के पास है ना आपका Yes, सी? sir. Yes. Yes, sir. नंबर. अरे हाँ या ना? Yes, 2 दिन sir. पहले पढ़ा है. Yes, correct? sir. So they are more near to that, so it's kind of medium size, क्योंकि हम लोगों का जो आ जाता है fatty acid goes till 24. Okay, so we are near the medium sort, medium zone. अरे हाँ या ना? करेक्ट. ठीक है, Yes, sir. मैं भी कुछ तगड़ा पॉइंट कनेक्ट करने वाला हूँ, सो ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा. ठीक है, तो सॉर्बिक एसिड, सॉर्बेट्स, ठीक है, दे आर जनरली यूज्ड इन वेयर वेरी गुड अमाउंट ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड और मीडियम चेन फैटी एसिड्स आर. सो एसिड्स एंड दिस, इसका यूजेज आपको ज्यादातर वहां दिखेगा. सो मीट्स में आपको दिखेगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में दिखेगा. ठीक है, then sometime which the pH is very limited. Okay, but not very like particularly, it's near to 4.5 to 6.5, उस रेंजेस वालों में गिरेगा. सो देखो ध्यान से देखना. चीज इज अ मिल्क प्रोडक्ट. अरे हाँ या ना? Yes, sir. फिश, Yes, sir. फ्रेश पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, मिल्क बहुत जगह यूज होता है. ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था? प्रिवेंट मोल्ड ग्रोथ इफेक्टिव अंटिल pH of 6.5. Is our meat coming in that range? Yes, sir. Is our milk coming in that range? Yes, sir. Is our milk product coming in that range? Yes, sir. सर कुछ सिट्रस फूड्स भी हमारे काम में आते हैं, कुछ बियर्स भी आती है. क्या करेगा? दे विल मेक देम, आपका मोल्ड ग्रोथ को रोकेगा. मोल्ड ग्रोथ. ओके, सो सॉर्बेट्स आर व्हाट गाइस? रिमेंबर, अभी थोड़ी देर बाद में पॉइंट कनेक्ट करने वाला हूँ. सॉर्बेट्स आर मोल्ड इनहिबिटर्स. अरे याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. सॉर्बेट्स आर गुड मोल्ड इनहिबिटर्स. ठीक है, क्लियर है? अब एक और अगर मेरे से कोई पूछे व्हाट इज द मोल्ड इनहिबिटर्स रिसेंटली वी हैव स्टडीड, इट इज विनेगर. अरे हाँ या ना? Yes, ये sir. देखो यहाँ रहा, मोल्ड ग्रोथ. Yes, sir. ठीक है, ओके, क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. Clear. Yes, sir. अब देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड, थोड़ी देर पहले बात की था मैं एसएफए के बारे में. यस और नो? दे आर गुड अगेंस्ट inhibility to molds like Penicillium roquefort, and this guy gives what? Sir, blue green Cheese. rods. चीज नहीं, चीज की बात नहीं कर रहे, रॉड्स. स्पॉइलेज वाली क्लास याद है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, ऑल गुड. अरे अभी तक सारे पॉइंट क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. मजा आ रहा है? हाँ सर. चलिए, अब देखो यहाँ पे और चीजें, डैमेजिंग चीजें आएगी. ठीक है, अब ग्लिसराइल एस्टर्स. ओके, दे दोस आर एस्टर्स. अब देखो ध्यान से बात करें. एस्टर्स, एस्टर्स कहाँ होता है गाइस? वेर यू फाइंड एस्टर्स? वेर Low acid foods. फैटी फूड्स, दे हैव एस्टर कंपाउंड्स इन. ओके, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, बहुत सिंपल चीज याद है. ग्लिसराइल मोनोलोरेट. ओके, मोनोलोरिन, दिस इज द जनरल नेम. ओके, इट इज एक्टिव अगेंस्ट दिस एंड दिस. तुमको याद क्या करना है? you don't have to remember the names and all. You have to remember it is active against what? So it is active against gram positive. First thing. Next thing, it is used where? So it is used in cured meats and refrigerated
products. Okay, that's it. So whenever you're reading Ace Granth, okay, you should make sure that this points and the last point. So always देखो जहां भी देखना उसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी देखो हम लोग ऊपर. ठीक है. देखो नाइट्राइट्स का देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है. ठीक है, करेक्ट. लास्ट पॉइंट क्या है वो देखो. फर्स्ट पॉइंट क्या है एंड लास्ट पॉइंट क्या है. ठीक है, दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर दिस इज कंटिन्यूएशन इन दैट. ठीक है, यहाँ देखो और यहाँ देखो. ओके, समटाइम द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट्स फॉर ऑल द कैटेगरीज हम लोगों ने डिजाइन ही वैसे किया है. ठीक है, पूरा रीजन और स्पेशली फॉर दैट. ठीक है. अरे एक एक स्मॉल क्वेरी था. एक्सेल वाले जो जो अगर हैं यहाँ पर उन लोगों के लिए फ्री में इस मंत्र मैंने रिलीज करवाया है ऑन वेबसाइट. ओके, आई थिंक कुछ लोगों को मैंने भेजा भी है. अदिति शिखा शिखा गॉट इट राइट. Yes. Yes, sir. आर यू यूजिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. एनी अगर उसमें कुछ भी लगे तो हमको बता देना बिफोर वी पब्लिश इट. ओके, Okay, sir. Okay, sir. सूरज आर यू देयर? हाँ सर. हो गया क्या अपना काम कंप्लीट? हाँ हाँ, बस होते आया वो जो क्वेश्चन पूल वाला चीज था हाँ वो हो गया. बस उसमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं थी वैसे. हाँ, तो एक हो काम गया करो, वो. उसको लोड कर दो और हाँ. 12:30 we'll have a break for 10 minutes. That time I'll tell you what to do further. ओके ओके, ठीक है सर. केदारे को बैक में बोल देता हूँ करने के लिए. Sure. Thank you. ओके सर. Yeah, thank you. चलो guys, let's continue. Okay. So actually the thing here is जो हम लोग के जब breaks होंगे ना अभी, I'm not talking about any other break. Today's class break. तो उस क्लास ब्रेक में क्या करेंगे हम लोग कुछ टेस्ट रिलीज करेंगे. ओके, 10 minutes टेस्ट ऑन वेबसाइट एंड दैट विल बी फ्री फॉर ऑल. जो भी अगर अभी ज्वाइन कर रहा है यूट्यूब पे ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, दोस्त विल बी मोस्टली पीवाई क्यूज लेकिन टॉपिक स्पेसिफिक. ठीक है, तो वो 10 minutes का ब्रेक आपका, आपको पानी पीना हो या रिफ्रेश करना हो तो दोस्त रिफ्रेशमेंट वी आर प्लान जिनको जो मन है. इफ यू लाइक यू गिव. सो इट्स अ 10 minutes शॉर्ट टेस्ट. ओके, एंड विल बी रिलीज्ड ऑन वेबसाइट. तो 10 मिनट में meanwhile I'll be preparing the next test. You guys have to go and give that test. Is that clear? मजा आएगा? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. 10 minutes में प्रीवियस 12 या 13 साल में उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपको मिलेंगे. So we will be making it 5 minutes test or 10 minute test depend on the topic or the severity of the question. Clear है? ठीक है, that we will do for all the upcoming night classes. So I'm planning at least 5 night classes before it. ठीक है, क्लियर? चलिए, Yes, sir. दैट्स ऑल अबाउट द ब्रेकिंग टाइम. तो इससे क्या लोगों की नींद उड़ी रहेगी. ठीक है. नाउ कमिंग टू द ग्लिसराइल एस्टर्स. तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, याद रखना. नाउ मेन इज अभी जो मैं कुछ कुछ पॉइंट बोलूंगा, कुछ कुछ चीजें बोलूंगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉरिक एसिड नॉट दैट इंपॉर्टेंट, not needed. Glycerol ester is like, if you can remember that's fine. If you can't leave it, no need to worry. Coming to this zones, okay, these two guys are like the MVP. ठीक है, ऊपर 3 MVP थे. कौन से थे सर? एस एन बोलो. सॉर्बेट, सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड. याद आया? Yes, Yes, sir. sir. वो MVP ऊपर थे. ठीक है, एंड दिस MVP आर एक्टिव अगेंस्ट व्हाट? ग्राम पॉजिटिव. करेक्ट. Yes, sir. Now coming here, natamycin and pimarycin. These two are what? These two are very very good in mold inhibitors. Okay, और ये क्वेश्चन है ना गेट में आया हुआ है. ठीक है, natamycin and pimarycin, they are used to what? To inhibit the molds. Can I say it again? It's a mold inhibitor. अरे हाँ या ना? Now Yes, sir. Yes, sir. principle. So that it binds to the sterile molecules in fungal cells of membranes and alter the permeability of the medium. So this is very important point.
कि करता क्या है और करेगा क्या है. So what happens if it is alters the permeability of the membrane, whatever is there in the cell, it will leak outside. So as the permeability changes, like permeability changes होता है आपका मतलब movement of the fluids and molecules will go easily. अरे हाँ या ना? Yes, So sir. Yes, the sir. permeability changes and the cell will dry out. Okay, it will dry out. ठीक है? So that's the important like netamycin how it works. ठीक है, clear है? So how Yes. what happens? Where it binds? It binds the sterile molecules in the fungal cell. And what it do? It alters the permeability. Clear है? समझ में आया अच्छे से? Clear? Done? Yes, sir. Yes, Yes. sir. चलिए, now that's good. Now benzoic acid. अब benzoic acid भाई साहब ये अब देखो ये यूज ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए एमपीपी बोला है. मोल्ड इनहिबिटर यूज इन वेयर सर क्योर्ड चीज में बहुत ज्यादा यूज होता है. क्योर्ड चीज. अब पूछेंगे सर क्योर्ड चीज क्या होता है गाइस एनीवन बोलिए व्हाट इज क्योर्ड चीज. So salted cheese. ट्राई 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 कम ऑन ट्राई ट्राई. सुना नहीं है ट्राई. अरे बोलो. देखो चीज मेकिंग में हम लोग क्या करते हैं आफ्टर चीज प्रिपरेशन लाइक दैट पर्टिकुलर लेट्स ले हम लोग उसको रेनेटिंग करेंगे. Right. Right. आफ्टर दैट विल पुट सम कल्चर एंड विल कीप इट फॉर Ripening process. द राइपन चीज इज जनरली नोन एज क्योर्ड चीज. क्लियर है? Yes, sir. ठीक. सो दोस आर द वन क्योर्ड चीज जिसमें फ्लेवर डेवलपमेंट करवाते हैं. फ्लेवर डेवलपमेंट. ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं. दैट इज फॉर क्योर्ड चीज. ठीक है. बेंजोइक एसिड वगैरह वगैरह. अब बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड इज मोस्टली यूज्ड. ओके यहाँ पे ध्यान रखना मैं अभी बोल रहा हूँ. अभी सारे एग्जांपल लिखना. मैं मोस्टली यूज इन लो पीएच फूड और कैन आई से हाई एसिड. ठीक है. हाई एसिड फूड बोले तो सिट्रस. हमारे तीन टाइप के फूड होते हैं ना लो एसिड फूड देन हाई एसिड फूड एंड एसिड फूड. करेक्ट. योर मिल्क इज कमिंग इन द वेयर लो एसिड फूड. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सर लो एसिड मतलब 4.5 से ज्यादा. हाई हाई इज लेस देन 3.5. एसिड इज 3.5 से 4.5. क्लियर? 4.5. Yes, sir. ठीक है. सो benzoic acids are generally used in your low high acid food or low pH that is less than 3.5 regions. अब देखो यहाँ पर सारे सारे के सारे एग्जांपल कैन यू सी क्रैनबेरी स्प्रीन सिनामन क्लोव्स फ्रूट जूस कार्बोनेटेड बेवरेजेस पिकल्स sauerkraut everyone is having nearly to 3.5 to 4 pH. ठीक है. अब बेंजोइक एसिड्स आर यूज्ड इन दोस. अब याद रखना कभी भी कोई बोले कि बेंजोइक एसिड मिल्क में डाल रहे हैं उसको चप्पल मारना. ठीक है. मीट में डाल रहे हैं गिव हिम लाठी. ओके गॉट इट. कहाँ यूज करना है? High acidic Yes, food. sir. हाई एसिड फूड और लो पीएच फूड्स. ओके फाइन. नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट वेयर इट इज यूज. इट इज effective against bacteria. ओके हेलो. अब देखो ये बैक्टीरिया ईस्ट के अगेंस्ट है. ठीक है. अब नाउ कमिंग टू ये डिफरेंट पॉइंट. ओके नॉन इनपुट दिस शुड बी कम हियर अंडर डिफरेंट हेडिंग. p हाइड्रोक्सी बेंजोइड अल्काइल एस्टर. सो इट्स अ जॉइंट कंपाउंड. ओके बेंजोइक एसिड हमारा किस फॉर्म में यूज करता है तो सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम बेंजोइड नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. पोटेशियम सोडियम बेंजोइड. तो देश अब ये अलग अंकल है. ठीक है. पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइड अल्काइल एस्टर. ठीक है. जनरली दे आर नोन एज पैराबेंज. ओके पैराबेंज. Parabens. Okay. So they are used in baked goods, soft drinks, olives, pickles, jam, jellies, syrups, etc. So syrups is not less than 3.5. अरे हाँ या ना? नहीं है ना? Baked goods जैसे let's say बटर ये ब्रेड है वो 3.5 के नीचे नहीं है ना. करेक्ट. वो आता है आपका 4.5 प्लस आता है. नियरली कमिंग Yes, अराउंड 5. sir. ठीक है. So para hydroxy benzoate. So it's also benzoate but it's different. It's having
Additional esters. So अब coming to the esters part. Esters are generally for the higher oil session. Okay, oils इसमें ज्यादा हो, fat थोड़ा ज्यादा हो comparatively. So can we say baked goods में fat होता है? Good one. Yes sir. Sir olive oil सुना है नाम? Yes, sir. Pickles. Sir pickles तो preserve भी हम लोग oil में करते हैं. ठीक है? Yes, sir. Now this guy parabens they are active against gram negative bacteria. ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग देखो, अभी हम लोग इतनी बात की, अभी तक एक ही ग्राम नेगेटिव आया है. यस और नो? Yes, वी आर sir. टॉकिंग अबाउट सो मेनी. ग्राम नेगेटिव कौन कौन आया अभी? ओनली पैराबेन्स. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. पॉजिटिव में कौन कौन आ गया है सर? आपका पॉजिटिव में आया है NSP. ठीक है, और आपका आ गया है बेंजोइक एसिड. ये भी आपका वहीं पे आता है. ठीक है. नाउ Esters. हाँ, एस्टर्स ऑल्सो. नाउ मोल्ड इनहिबिटर्स में कौन कौन है सर? मोल्ड इनहिबिटर्स में आपका कौन है भाई? बोलिए. विनेगर, Natamycin. Natamycin. मेटामाइसिन. ठीक है. What about one thing you guys forgot? What was that? Sorbate. remember. Sorbets. ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलिए. नाउ नेक्स्ट इज इपोक्साइड्स. ठीक है, तो ये चीजें मैं बताया जा रहा हूँ, मैं सब चीज नहीं बताऊंगा. ठीक है, मैं एक एक कनेक्ट कर रहा हूँ. अब हम काम कीजिए, क्योंकि ये अगर कर देंगे ना तो कल सुबह हो जाएगी. सिर्फ फूड एडिटिव्स में वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके, सिर्फ प्रिजर्वेटिव में इतना टाइम में एक पूरी क्लास पढ़ा सकता हूँ. प्रिजर्वेटिव्स 6 घंटे की, इतना चीजें हैं. ठीक है. सो आई गिव यू द लॉजिक हाउ टू स्टडी दिस पॉइंट. क्लियर? अरे हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट जंप करके दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ. दैट इज एंटीबायोटिक्स एंड दिस आल्सो काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स. अब क्लोरोटेट्रासाइलिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइलिन. अभी देखो, एग्जाम में नेटामाइसिन और पीमारेशन के बारे में पूछा है. कहाँ यूज है ऐसा इस चीज में, क्योर चीज में? याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, To sir. prevent what sir? Penicillium roquefort. It's a mold. Okay, correct. Yes, sir. Yes, sir. Now अभी ये भाई साहब अभी तक पूछे नहीं हो. जिस दिन पूछ लिए तो तुम लोग आंसर लगाना है. ठीक है. अब ये करता क्या है? इट एडजंक्ट्स टू द अदर मेथड्स. मतलब ये दूसरे मेथड के साथ में काम करेगा, अकेला नहीं काम करेगा. डिलेज द स्पॉइलेज ऑफ रेफ्रिजरेटेड पेरिसेबल फूड. ठीक है, ये रेफ्रिजरेटेड फूड में काम आएगा, और जो पेरिसेबल इन नेचर है, इससे अबाउट चीज एक्सेट्रा, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह वगैरह. ठीक है, कूल. सो ब्रेड, फ्रूट जूसेस, वाइन, बियर यूज व्हिच आर यूज्ड इन those things. So cold pasteurization. Along with this guy will be used. Along अकेले ये नहीं है. So this guy is like, hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. हाफ टिकट हम लोग बोलते हैं ना, हाफ टिकट. ठीक है. So this is like छोटा बच्चा, small kid. He can't travel alone. He should have a elder guy with him. Okay. So that's the thing. चलो, that's all about antibiotics and this main preservative. अब हम लोग काम की चीजें क्या देखेंगे? Here. ये टेबल बहुत है इम्पोर्टेंट. अब ये कहाँ यूज होगी, क्यों होगा, क्या है, एवरीथिंग. ओके. सो दिस आर 2 सेट्स. ओके, ये टेबल यूं नहीं जा रही है. ओके, इट इज एंडिंग हियर ऑन. यू कैन सी एनिमल सोर्स इट्स ओरिजिन, प्लांट सोर्स इट्स ओरिजिन, माइक्रोबियल सोर्स इट्स ओरिजिन. क्लियर है? Yes, sir. नाउ चिटोसन. अभी कोई पूछा सर नेचुरल वालों को हम लोग क्लास 1 क्यों नहीं बोलेंगे? अभी देखिए. Chitosan from shellfish and fungal cell wall inhibit the growth of foodborne molds, yeast and bacteria. अब foodborne molds and yeast, so can I say it's a very good mold inhibitor? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो, ये टेबल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन कभी बनेगा ना एंटीमाइक्रोबियल, तो ये टेबल पे ही बनेगा, श्योर शॉट. ओके. Okay, this table has lots of things, lot of information. It's active against what? It comes from where and what it does. Okay, so यहाँ पे देखो, iron binding compound in milk and colostrum. हम लोगों ने थोड़े दिन पहले हम लोग कहाँ बात की थी? लैक्टोफेरिन को डेयरी में. डेयरी is kind of what? Whey. Lactoferrin is a type of whey, right? Along with alpha beta Yes. lactose. Yes, sir. Yes, sir. अरे कनेक्ट हुआ?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Antimicrobial. ठीक है, so it inhibits E. coli. E. coli is what? So it's a gram negative Gram bacteria. negative bacteria. देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है gram negative bacteria. ठीक है, क्लियर है? ऑल गुड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखो ये आपके सोर्सेस है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है. ओके, आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन इट बिकॉज यू ऑलरेडी हैव, और बहुत सिंप्लीफाइड वे में दिया है, कुछ और आगे देख बताने की जरूरत नहीं. सो यू अंडरस्टूड व्हाट हाउ टू रीड इट, करेक्ट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये यहाँ पे फंक्शन के साथ में एडिशनली यहाँ पे कोई डिटेल दिए, दैट इज important chemical preservatives which are used as an antimicrobial. ठीक है, so our initial topic was preservative only, right or not? But we came to antimicrobial because antimicrobials are one of the type of preservative. अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब हम लोग केमिकल की बात कर रहे हैं, so it will have both बोले तो natural as well as artificial, correct or not? Yes, एसिटिक sir. विनेगर, विनेगर, अब हम लोग बात कर रहे हैं सम मोल्स और इसके अगेंस्ट, तो ये काम क्या करेगा, कैसे करेगा? इट डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बेंजोइक एसिड, व्हाट इट डज? डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, इनहिबिट द एंजाइम मोल्ड्स, enzymes, okay, enzyme which are there in that. So अब हम लोग lipolytic की बात करते हैं, lipolytic या proteolytic bacteria से microbes, anything, fungi, anything. What they do, they releases lipase or catalase, anything they release, okay. Then proteolytic, it releases what? Pepsin or anything, any other enzymes. बोलो जो protein को degrade करता है. What was that? Pepsin ही होता है ना? Sir, कोई और होता है? papain भी तो. Papain is not degrading. Degrading के लिए कौन होता है? ठीक है, चलिए. हाँ, नाउ निसिन वगैरह वगैरह, ठीक है. सो डिसरप्ट द सेल मेम्ब्रेन, ग्राम पॉजिटिव एंड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. ठीक है, तो जहां कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है वो ध्यान रखना. नाइट्रेट्स, सर इट इनहिबिट्स द एंजाइम बैक्टीरिया प्राइमरली क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum. प्रोपियोनिक बैक्टीरिया मोल्ड्स के लिए बहुत अच्छा होता है. ठीक है, सॉर्बिक डिसरप्ट्स एंड एक्ट एज अ mold inhibitor and used in disrupting cell bacterial cells pore generation. Sulfurs, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें है. ओके, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब एक मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखिए. सो इन एनी सुगर रिच प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर कुछ सुगर रिच प्रोडक्ट्स उसमें अगर कोई प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं, इट हैज अ कॉमन बेसिक डिफॉल्ट एक्शन होगा, दैट इज मोल्ड एंड ईस्ट प्रिवेंट. बिकॉज मोस्ट ऑफ द sugar rich products, okay, they get damaged because of these two people only. अब इसका रीजन बताता हूँ. थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था कि सुगर एंड सॉल्ट, व्हाट इट डज, इट रिड्यूसेस द AW. अरे हाँ यार, Yes, Yes. sir. अब AW अगर घटता है तो आपको पता है किसी की औकात नहीं है इन बैक्टीरिया आफ्टर हेलोबैक्टीरियम टू ग्रो बिलो दैट इज 0.80. अरे हाँ है ना, और 0.75, दिस टू रीजन. ठीक है, अब हायर सुगर रिच प्रोडक्ट्स में क्या होता है, AW इट ड्रॉप्स बिलो 7.75. तो यहाँ पे कौन अंकल बैठते हैं, सर मोल्ड इन ईस्ट. अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह हम लोग जैम जेली में यूज करता है, तो जैम जेली वगैरह दे आर सुगर रिच. अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, मोल्ड्स, सल्फर डाइऑक्साइड दिखा, सॉर्बिक एसिड तो हमको पता है मोल्ड्स में, प्रोपियोनिक एसिड भी हम लोग कुछ सुगर रिच प्रोडक्ट में मोल्ड दिखा. अरे दिखा, Yes, बेंजोइक sir. Yes, sir. जैम जेली वगैरह में देखो, मेरे मोल्ड दिखा तुम लोगों को. एसिटिक एसिड हम लोग पिकल्स वगैरह में यूज करता है, हायर सॉल्ट, सब मोल्ड दिखा. Yes, sir. कनेक्ट हुआ, टॉपिक की Yes. फंडामेंटल समझ में आई, एवरीवन क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, दैट्स गुड, वी विल मूव फॉरवर्ड. देखो, अब हम लोगों का प्रिजर्वेटिव यहाँ पे होता है द एंड. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. 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 guys, +1 in the chat box if you are happy with what I taught you just now. मजा आया?
Yes, sir. यूट्यूब वाली जनता क्या हाल है, कितने लोग देखते हैं? कोई क्वेश्चन है पूछ लो अभी. वी हैव 2 minutes फॉर दैट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ. तो दिस इज ऑल अबाउट दी. 6 लोगों के, बाकी लोग सो गए लगता है. अरे जाग रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट्स गुड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक. अब देखो, अब सबसे बड़ा टॉपिक था प्रिजर्वेटिव्स का यूज. उसके बाद तो हम लोग तनातन निकलेंगे आगे. हाँ, अब आगे आएगा एंटीऑक्सीडेंट इमल्सिफायर्स. ओके, दोस विल बी गेम चेंजिंग. अलग ही मजा आएगा उसमें. सो प्रिजर्वेटिव में मजा आया, फील आया. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब तुम्हें इस रन पकड़ोगे ना तो अलग ही फील आएगी. ठीक है, फुल फूड रिड्यूस. चलिए नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट विद. 5 मिनट है तो लेट्स टॉक अबाउट योर एंटीऑक्सीडेंट. ठीक है, अब एंटीऑक्सीडेंट हम लोग बात कर रहे हैं तो विल टॉक अबाउट दैट इन लेटर ऑन्स प्लीज. चलो, एंटी ऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स, सो एंटीऑक्सीडेंट आपका क्या काम करने विल हेल्प इन preserving color, texture. Okay, then comes to flavor, etc. Is it satisfying our first need? What was the first need? Characteristics for texture. अरे हाँ यार, is it binding those characteristics to uniform? Yes or no? अगर कलर Yes, sir. प्रिजर्व कर रहा है तो इज इट डूइंग. तो टेक्सचर कर रहा है, इज इट डूइंग. सब फ्लेवर इज करेंगे. अब देखो कलर, कलर की बात करते हैं हम लोग. ग्रीन कलर प्रिजर्वेशन. ठीक है, ग्रीन कलर प्रिजर्वेशन. देन कम्स टू द मीट का कलर प्रिजर्वेशन. ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग. लेट्स से कट फ्रूट्स, वहाँ पे ब्राउनिंग होती है. करेक्ट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ब्राउनिंग आर ऑफ टू टाइप्स, आर एंजाइमेटिक एंड Non-enzymatic. नॉन एंजाइमेटिक और Non-enzymatic. ऑक्सीडेटिव. करेक्ट. Yes, Yes, sir. sir. टू थिंग. फ्लेवर की बात करते हैं. सर फ्लेवर अंकल आए. फ्लेवर में हम लोगों का रैंसिड. सर रैंसिड 2 तरीके से होता है, ऑक्सीडेटिव एंड लाइपोलाइटिक. अरे हाँ यार, करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. टेक्सचर, ये भी आपका एक प्रोटीन डिग्रेडेशन नहीं करना. ठीक है, वो अलग बात है, आगे देखेंगे उसको. ठीक है, ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट. आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ आ रहा है? इट इज कमिंग एट 2 places. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट हैपेंस? सो एंटीऑक्सीडेंट में क्या होता है? फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? सर फ्री रेडिकल. अरे हाँ यार ना. Yes, sir. ओके, ठीक. तो व्हाट एंटीऑक्सीडेंट डू? It binds with this free radical AA, okay, and prevent this free radical to act on. कि अगर ये free radical बना तो what will happen? It will start damaging. It will start aligning with something with like H2O को break कर देगा या कुछ कुछ करेगा. So like OH it breaks sometimes and it form later on. It form, okay, and it form what? It form H2O. What is H2O? Peroxide. It is what? Peroxide. Hydrogen peroxide. H2 peroxide. Correct.
Yes, And what sir. it is? It's strong. Strong oxidizing agent. ठीक है, अगर ये बन गया है तो दवाई बचाएगा. इन दैट वे व्हाट विल डू, इट विल एंटीऑक्सीडेंट अगर हुआ तो फर्स्ट स्टेप में ये पूरी प्रोसेस रोक देगा. ठीक, दैट्स द यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. प्रिंसिपल समझ में आया पब्लिक? Yes, sir. Yes, sir. यूज केस समझ में आए? आए ना? Yes, sir. आया. चलिए अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट विल सी दैट इज द एंटीऑक्सीडेंट्स. एग्जाम्पल देखिए कौन कहाँ कहाँ यूज होता है ना एंटीऑक्सीडेंट. एस्कॉर्बिक एसिड. सो ये मल्टी रूपिया है, ये बहुरूपिया है, बहुत जगह यूज होता है. इफ यू रिमेंबर अवर एसिडुलेंट्स क्लास, एसिडुलेंट्स, इफ यू रिमेंबर अवर एंटी माइक्रोबियल क्लास, हमें बात किए थे हम लोग इसके बारे में. आया ना? Yes, sir. सर्फ सल्फर ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड्स की बात की. ठीक है, फिनोलिक कंपाउंड. ठीक है, नेचुरल टोकोफेरोल्स. टोकोफेरोल क्या है आपका? विटामिन ई. करेक्ट और नॉट? Vitamin E. Yes, sir. ठीक है. सम अल्कोहल्स. कौन सा अल्कोहल सब लोग हम लाके देंगे. ठीक है. देन ईडीडी. ओके, बहुत सारी चीजें आपकी. सम गम्स आर देयर. देन आपके अगर मार्केट में जाओगे तो आपको बीएचए एंड बीएसटी मिलेगा, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोलिन. क्लियर है? दिस Yes, आर sir. मार्केट. ठीक है. अब एक भाई साहब प्रोपाइल गैलेट. अब ये भाई को जानना है, याद रखना. रिमेंबर इट फॉर लेटर हाफ, अभी काम आएगा उसको. ठीक है. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आपको एज ग्रंथ में दे रखा है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट. ओके, अब जैसे हम लोग फिनोलिक कंपाउंड में कौन लोग वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कैथेचिन वाले लोग, जिनमें कैथेचिन. कैथेचिन कहाँ पे होता है? सब चाय में बहुत अच्छा होता है. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. एलिसिन्स. एलिसिन्स कहाँ होता है सर? ऑनियन वगैरह, ऑनियन का. करेक्ट. Yes, sir. Yes. फ्लेवोनॉइड्स. फ्लेवोनॉइड्स कहाँ होता है गाइस? इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. करेक्ट. Yes, आइसोफ्लेव. Yes, sir. आइसोफ्लेवोन्स कहाँ होता है पब्लिक? बोलिए. green tea. ग्रीन टी. ठीक है, क्लियर? अरे आया. Yes, Yes. sir. पिगमेंट्स होता है. पिगमेंट्स बोले तो आपका लाइकोपिन. अब लाइकोपिन की बात कर रहे हैं. लाइकोपिन इज गाइस व्हाट? अब कुरकुमिन. कुरकुमिन. ये दोनों दोनों अंकल कहाँ, ये दोनों बच्चे कहाँ के हैं सर? ये दिस टू गाइस आर फ्रॉम दी फादर. Tar- Carotenoid. कैरोटिनॉइड इज व्हाट सर? इट इज अ फैट सोल्यूबल. अरे हाँ यार. Yes, sir. फैट सोल्यूबल में तो फैट मतलब रेंसिडिटी क्रिएट करेगा. अरे हाँ यार. तो इट Yes, sir. प्रिवेंट्स हाउ दैट. अरे क्लियर है. सो इफ एनीवन आस्क यू सर मिल्क में कोई नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है क्या सर? बहुत अच्छा वाला है. कौन है सर? वो है हमारा कैरोटिनॉइड. करेक्ट. Yes, Yes, sir. sir. अरे आया. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इज इट क्लियर एंटीऑक्सीडेंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए, sir. लेट्स हैव 5-10 मिनट्स ब्रेक. मीनवाइल मैं टेस्ट अपलोड करता हूँ, तो नेक्स्ट ब्रेक में हम लोग वो यूज करेंगे. ठीक है, क्लियर है? ओके. Yes, sir. Yes, sir. So we'll start at 12:42.
सूरज, व्हाट इज द स्टेटस? हेलो 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 गाइस, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो यार। ऐसा में सो जाओगे, तुम भी सो जाओगे, मैं भी सो जाऊंगा। दुबे साहब, फर्स्ट क्लास है क्या? यस सर। मजा आ रहा? यस सर। बोलो। सर हेलो। आज तो सर फर्स्ट क्लास है, पहली बार मैंने अटेंड किया है। ओके। और कोई है क्या फर्स्ट टाइम वाला? मुश्किल है, कोई नहीं होगा। बाकी सब पुराने लोग हैं। शक्ति, ऑल गुड? Yes, sir. ठीक है, चलिए शुरू करें क्या वेट करें 2-3 मिनट और? तो शुरू कर दीजिए। अच्छा, नींद आ रही है? नहीं, नींद नहीं आ रही है। चलिए, लेट्स वेट फॉर 40 एटलीस्ट। 3 मिनट में पानी पी के आता हूँ। ठीक है। सर
हेलो, मैं ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. बोलो कौन सा टॉपिक का टेस्ट चाहिए फर्स्ट? 5 मिनट्स टेस्ट। सूरज, हेलो। टेस्ट नंबर सर 1 डेरी। टेस्ट नंबर 1 डेरी। डेरी का, चलो ठीक है। 5 मिनट्स। ओके। क्वेश्चंस? Number of questions, how many are there in the entire pool we are keeping? ओके, ठीक है। If it is like number is 10, then put 5 minutes. If number is 14, every 5 minutes, every 5 question increases, put 2.5 minutes more. Okay. ठीक है। Okay. But 10 question, you put 5 minutes. That's it. ओके Chaliye. ओके। Let them also have fun. Guys, shall we start? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो एक बार +1 कर दीजिए if your guys are in the meeting. सोए नहीं हो तो let's start. Where were we? चलो चलो कोई बैठ मतलब कोई रिवाइज करवाएगा क्या किया था हमने लास्ट 1 hour 20 minutes में? बोलिए। Types of additives, types of preservatives, ठीक है। then origin of various additives like microbiological or animal source, plant source. ठीक है, गुड गुड। चलो चलो चलो, लेट्स start moving further. So we will talk about some important, that is sweeteners. Okay, sweeteners very important gate purpose पे, if you are giving any interview to any industry, FSO, anything, कहाँ भी जाओगे ये पूछा जाएगा। तो coming to that सर point, like sweeteners सर टेस्ट अभी देना है और रुक नेक्स्ट जाओ, ब्रेक? नेक्स्ट ब्रेक ओके ओके ठीक है सर। बताया जाएगा, लिंक यहाँ पे शेयर कर देंगे। ओके सर ओके। ओके, ठीक है। चलो उससे पहले मैं पूरे इसकी बात में मैं एंट्री कर रहा था, एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग, दैट्स इट। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sure. देखो अब एसिड का हम लोगों का एक्शंस क्या क्या है, एप्लीकेशंस क्या है और एग्जांपल क्या है। देखो
एसिड अगर एडिटिव है तो बफरिंग एज सिस्टम में यूज होता है, माइक्रोबियल इनहिबिटर्स में यूज होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने बात किया था सॉर्बिक एसिड, याद आया? बेंजोइक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोल दो विनेगर, अरे हाँ यहाँ, करेक्ट Yes, गाइस? sure. Then chelating agent, setting of pectin gel, deforming agents or emulsifiers, okay, coagulation, culture, dairy products, rennet में है, ठीक है, citric acid, hydrochloric acid, multiple functions, okay. So those functions are important examples, ठीक है. Now lowering of pH for canned foods, lowering of pH in where? So lowering of pH for what? Guys, lowering of pH in beverages, soft beverages, okay, या फिर cola beverages. Which particular acid we are using in those? याद आया? phosphoric acid. Correct. Phosphoric acid. ठीक है. Limited hydrolysis वगैरह, ठीक है. So there are lots of things, okay, which you have to go through in this table. ठीक है. Now common acids used in that. Now next is chemical leavening system, release of gas वगैरह. So this lots of information are there. Please read this table before you go for GATE exam. It will help you for sure. ठीक है. Clear? What are bases? How it is in buffer system में क्या है आपका pH control main function application है. What are the example? Lactic acid, phosphate salts, protein, which are animal salt, polycarboxylic acid, phosphate salts, protein, plant tissue, citric, malic, oxalic, tartaric acid. So ये ohms gap वाले लोग हैं, like low acid. अब देखो, these are weak acid. weak acid, अरे हाँ यार ये weak acid है ना, citric, malic वगैरह. So citric, Yes, malic, sure. वीक एसिड में क्या होता है आपका, द पीके वैल्यू इज वेरी लेस, वेरी स्मॉल, ओके. सो दे रिलीजेस दी, मतलब पीएच को इतना जल्दी गिरने नहीं देंगे, वो कंट्रोल धीरे धीरे गिराएंगे, ओके, धीरे धीरे गिराएंगे तो पीएच कंट्रोल. अदिति 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 तुम्हारा एंटर साउंड है, ठीक है. तो बफर सिस्टम्स. So what will happen if the pH drop is very limited and in control? They will act as a buffer system. Okay? So that's why those ohms gap wala guys are used. Ohms gap बोले तो आप कुछ लोग होंगे सर, what? Hello? Yes, sir. Malic, Yes, sir. oxalic, arsenic, gallic, adipic, and last one is your param. ठीक, all good. Ohms gap वाले लोग आ गए याद में, ठीक है, क्लियर है? ओके. सॉल्ट्स आर हैविंग वेरियस. नाउ यहाँ से हम लोगों का गेम शुरू होने वाला है इमल्सिफायर्स के बारे में. ओके. मोनोडाइट ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ओके, ये एक है. सो अगर आप कोई इमल्सिफायर्स की बात करें तो आपको फॉस्फेट्स, ठीक है, दिस कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. टार्ट्रेट्स, ठीक है, सिट्रेट्स, ओके, दिस थ्री. अब देखो, फॉस्फेट आपका हेक्सा में आएगा, ठीक है, नॉर्मल में होगा, टाई में होगा, ट्राई में होगा, ओके. टार्ट्रेट्स आर आल्सो इन द सेम वे, ओके. सिट्रेट्स, जनरल्स, ओके, बहुत सारी चीजें. सो दिस entire emulsifier will round off and it will move around these three categories: phosphates, tartrates and citrates. क्लियर है? अभी हम लोग वो डीप में जाएंगे, ब्रीफ लेवल में समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब जेल फॉर्मेशन के लिए कुछ यूज होता है, जेल फॉर्मेशन में भी होगा आपका. जेल फॉर्मेशन में दो ही लोग हैं, ठीक है. अब देखो यहाँ पे ये रहा फॉस्फेट्स एंड ऑल, फाइन. अब दैट इज ऑल गुड. लेट्स गो टू योर स्वीटनेस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलग ही मजा है उसको पढ़ने में, ठीक है. अब स्वीटनेस, तो इसमें आएगा तुम्हारा नेचुरल स्वीटनर एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर. क्लियर है? दो ही टाइप है ना. Yes, sir. Yes, sir. अब नेचुरल स्वीटनेस, व्हाट आर नेचुरल स्वीटनेस? फॉर एग्जांपल डेक्सट्रोज. फिर कोई और? बोलो.
हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. बोल भी दो यार फिर तो। Stevia, Stevia is what? a natural sweetener. Natural sweetener, but it's a low calorie or no calorie sweetener, correct? हाँ, यार तुम लोग बोल नहीं रहे हो, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं? बोलिए। पढ़ना है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। बोलो भी यार, आंसर भी दो। चलिए आओ। कैटेगरीज, ओके। स्वीटनेस बहुत अंदर अंदर है हम लोग को। ब्रीफ में हर बच्चा जानता है कि इट इज नेचुरल एंड विच आर आर्टिफिशियल, ओके। और नेचुरल लाइक, ठीक है, बहुत सारी चीजें। लेट्स टॉक अबाउट बेसिक थिंग्स। व्हाट आर द क्रिटिकल? हम लोग टेक्निकल लोग हैं, हम लोगों से टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा ये कौन सा नेचुरल है ये कौन सा आर्टिफिशियल। they'll ask you in the categorizing. Okay, so generally categories में आपको तीन कैटेगरीज में मतलब ब्रीफली अंडर, ओके, सल्फोनामाइड्स, साइक्लामेट्स, सैकरीन एंड सल्फोनेट, फ्लोरोसैकेराइड्स, सुक्रालोज, पेप्टाइड्स, अस्पार्टम एंड नियोटाइड, ये तीन जोन में हम लोग डिवाइड किए। ठीक है, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो ये हमारा बेसिक थिंग्स, ओके। अब सर ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? आगे बात करेंगे इस पे, ठीक है। ओके सर। थोड़ा समझ आएगा, दोनों भाई, सब कुछ आएगा समझ में, बट थोड़ा समझ, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी राइट इट डाउन टू सूरज। हम्म। चलिए, देखो ये पूरा टेबल है ना, ये यहाँ पे पूरा गेम शुरू हो। अभी हम लोगों ने ऊपर एक टेबल पढ़ी, करेक्ट? व्हाट वाज दैट? ये रहा, सल्फोनामाइड्स, ठीक है, साइक्लामेट्स, सैकरीन, एसल्फाम किया, ओके। अब देखो ध्यान से, अमाइड्स, ठीक है, पेप्टाइड्स, ओके, सैकराइड्स। थोड़ा ध्यान सोचो, ये प्रोटीन बेस में आ सकता है, ये भी, ये लेग्यूम और फैट बेस में, मतलब कार्बोहाइड्रेट बेस में। हेलो, ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम लोग बेसिक बात करें तो तुम्हारा प्रोटीन, फैट बेस्ड, ओके। एग्जांपल दूंगा, इनमें मत घुसना अभी। देखो वे प्रोटीन बेस्ड, देखो आपके प्रोटीन में होगा वे प्रोटीन बेस्ड। किसी का माइक ऑन है? बंद कर दीजिए, इंग्लिश नॉट स्पीकिंग, ठीक है। लेग्यूम बेस्ड, लेग्यूम, लेग्यूम मतलब आपका लेंटिल्स, दे आर हैविंग हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। फैट बेस्ड में आपका कोको, करेक्ट। नट बटर्स, नट बटर्स बोले तो योर, क्या बोलते हैं उसको? हेलो, पीनट बटर। पीनट बटर। पीनट बटर में हम लोग कोई स्वीटनर नहीं डालते, बट देखा होगा पीनट बटर व्हेन यू आर मेकिंग इट इज स्वीट इन फ्लेवर, यस सर। करेक्ट। कोकोनट, यस सर। कोकोनट में कोई एनीथिंग वी आर मिक्सिंग, नो, बट इट इज स्वीट फ्लेवर इनसाइड, राइट? यस सर। यस। अब ये बेसिक कैटेगराइजेशन तुमको बताया, डीप में जाएंगे ना हम लोग को और फील आएगा इसके बाद, ठीक है, कौन सा प्रोटीन बेस है। समझ में आया कैटेगरीज? कोई कुछ पूछ रहा था? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ू मैं? यस सर। यस। यस सर। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे पढ़ना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अब स्वीटनर, ब्रांड नेम, नॉट मच, ओके, कोई मतलब नहीं। नंबर ऑफ टाइम्स स्वीट, अब ये सबके लिए याद नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट के लिए याद। क्या कि हाईएस्ट किसका है सबसे ज्यादा और लोएस्ट किसका है, ठीक है, दैट। नेचुरल कैलोरीफिक और आर्टिफिशियल, अगर ये कैलोरीफिक है तो कैलोरी रहेगा, नॉन कैलोरीफिक है तो नॉन कैलोरी, और एनी अदर इफेक्ट्स व्हिच विल कम, तो ये आपके काम का नहीं, ये एफएसओ वाले अंकल लोगों का, ठीक है। इज नॉट फॉर यू, so this column you can ignore it while you're reading is clear है। ओके, Yes, sir. ये भी आपके काम का नहीं, ये भी एफएसओ वाले अंकल, आपके लिए काम का है कॉलम 1, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो सैकरिन। सैकरिन इज वाइडली यूज, ओके, वाइडली यूज। जिस देखा होगा गर्मी के सीजन में मैंगो वाला आता है, मैंगो जूस सेंटर एवरीवेयर, अरे हाँ या ना, Yes, sir. सो दे यूज सैकरिन। ओके, सैकरिन वो बहुत ज्यादा, विच इज अ चीप सोर्स एज वेल एज इट्स अ लो कैलोरी और नो कैलोरी, ठीक है। तो नाउ आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, इट्स मेड इन इंडस्ट्रीज, ओके, नो कैलोरी स्वीटनर। फर्स्ट थिंग, नाउ एस्पार्टेम, ठीक है, इट्स आर्टिफिशियल स्वीटनर, नो कैलोरी। अब देखो, अब इसे नंबर ऑफ टाइम्स एज स्वीट एज टेबल शुगर। व्हाट इज टेबल शुगर? इट्स सुक्रोज, क्लियर है? Sucrose. Yeah. 200 to 700 times sweeter than sucrose, okay, 160 to 220 times that of sucrose, ठीक है। now अब इसका एक पॉइंट कभी पढ़ लेना, क्योंकि गेट ये एफएसओ की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है, सीबीटी में, ठीक है। इन people with a rare genetic condition, phenylketonuria, aspartame cannot be properly processed by the body, and that's why, so जब भी आपका aspartame यूज होता है कहीं पे भी, उसके लेबल पे लिखा है कि the people who are suffering from phenylketonuria, they should not consume it because they can't digest it, that's it, ठीक है, इजी सिंपल, आगे बढ़े, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब देखो ये सारे आर्टिफिशियल है। अब देखो इसको याद कैसे करना है सर, बहुत ही आसान है सर, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसका है सास नियो, ठीक है, दैट इज योर ऑल आर्टिफिशियल नो कैलोरी स्वीटनर, ऑल आर्टिफिशियल नो कैलोरी स्वीटनर, नियो सबसे बड़ा भाई है। सो नियो इज, गाइस किसका माइक ऑन है भाई, कोई मूवी देख रहा है यार बगल में? अदिति प्लीज। Sorry, sir, that was my brother. Sorry. फाइन, ठीक है। नाउ सो सास नियो, अब नियो भाईजान सबसे बड़े हैं, सो दे इट्स द स्वीटेस्ट अमंग एवरीवन, इट्स 8000 यूनिट्स ऑफ व्हाट सुक्रोज, सैक्रानिन इट इज गोइंग टिल 700, ठीक है, एस्किल फॉर्म 160 टू 220, क्लियर है? एस्पार्टम सॉरी, नेक्स्ट इज ए, यहाँ पे एक और ए आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अगर आपको पूछे सर आर्टिफिशियल नो कैलोरी, सर हमको पता है सास नियो, क्लियर है, पूरी टेबल खत्म, Yes, sir. ठीक है। सुक्रालोस अब आता है हमारा, सुक्रालोस 600 हो गया, स्प्लेंडा वगैरह ये कोई जरूरत नहीं, हमको आगे देखना है, ठीक है, डीओ टेबल। चलिए आगे जाते हैं। नाउ रेबुयोडाइसाइड, ठीक है, अब ये एक स्टेविया एरिथ्रोटोल हो गया, सॉर्बिटोल, सॉर्बिटोल अंकल, ये क्या चीज है भाई? सर इट इज ऑल्सो अ ए, अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Also it is active against gram positive bacteria, it is AM also, correct? Sorbets Yes, sir. and sorbitol used in where? mold inhibitors में काम आता है, Yes, Yes. sir. ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सोर्बिटोल वगैरह, सो 0.5 to 0.7। अब थोड़ी देर पहले बात किया था, सबसे ज्यादा स्वीट कौन है सर? नियो। सबसे कम कौन सा सर? आपका सोर्बिटोल, दैट इज 0.5 to 0.7, याद रखना, ओके, क्लियर है? यस सर। Yes, sir.
ठीक है, सो आपका नेचुरल नो कैलोरी में आ जाएगा आपका RSS। भाई इसको कोई नहीं जानता, एवरीवन रिमेंबर दिस राइट, न्यूज में छाए रहते हैं लोग, ठीक है, दैट इज इट। सो आपका आर्टिफिशियल नो कैलोरी दैट इज सास नियो, ठीक है, सास नियो। एंड इफ इट इज natural no calorie, sir, it is RSS. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, that's all. Now coming to this, अब ठीक है, RSS are work playing videos on MX player, that's it, that's are all natural. So natural RSS playing videos on MX player, that's it, खत्म, all good. Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब sir. MX में अब नो कैलोरी में RSS आ गया, MX मतलब लो कैलोरी, ठीक है, खत्म, ओके, चलो आगे बढ़े, ऑल गुड, Yes, sir. Yes, sir. कूल। अब देखो कैटेगरीज ऑफ स्वीटनर्स, अब यहाँ पे हमारा गेम शुरू होगा। ये तो मैंने बेसिक फंक्शंस के बारे में बताया कि कौन क्या क्या है, ठीक है। अब देखो हमने ऊपर देखा था साइक्लामेट्स, देन वी टॉक अबाउट साइक्लामेट्स, ठीक है, यूज एज अ सॉल्ट्स, ओके, हीट स्टेबल है, लो ऑनसेट, परसिस्ट लॉन्ग टाइम, लो कैलोरी स्वीटनर। अब देखो ये वाला पॉइंट, लो कैलोरी स्वीटनर। अभी लो कैलोरी स्वीटनर में हम लोग कौन से बात किए थे गाइस, एमएक्स की बात की। एमएक्स बोले तो मैनिटोल एंड जाइलिटोल, करेक्ट है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब दिस ऑल गाइस एवरीथिंग दे आर कमिंग अंडर सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स इज अ बिगर कैटेगरी, हम लोग ऊपर देख रहे थे 3 डब्बे बनाए हुए, राइट, उसमें एक में सल्फोनामाइड्स था, करेक्ट, द फर्स्ट वन। Yes, sir. So those, that is a bigger picture, okay, under that smaller trailers are there, okay, so these are those guys, ठीक है। सल्फोनामाइड से पेप्टाइड्स यहाँ पे आएगा, ये अलग ब्रांच, ठीक है। तो आपका सल्फोनामाइड्स में मतलब सल्फर कंटेनिंग होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, विच, अब क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सल्फर इन दी प्रोडक्ट, तो आपको याद रखना है CSA, सल्फर से CSA, ओके, दे आर हैविंग दिस सल्फर कंपाउंड एंड दे आर दिस साइक्लामेट सैकराइन एंड एस्पिरिन, दे हैव दिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी देखा होगा शुगर बर्न करता है, एक गंदी सी स्मेल आती है, Yes, sir. Yes, sir. सैकराइन को कभी जला के देखना, ठीक है, ट्राई वंस। सो वेरी बैड स्मेल कम्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ H2S, एंड इट्स अ वेरी बैड गैस, ओके, रोटन अंडे की जैसे स्मेल देता है। Because of why? Because it contains sulfur and amides. Amides is what? It's a nitrogen. So आपका SO H2S and NH3 NH2 बनाता है, which both are pungent and bad smelling. Clear है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अरे चीजें क्लियर हो रही है, कनेक्ट हो रहे Yes, हैं, sir. ठीक है। चलो एस्पार्टेम में देखो PKU, ये अभी थोड़ी देर में बताया था, कैन बी हार्मफुल फॉर पीपल, ओके, क्लियर है। नियोटेम of high sweetening power stable under food processing content and flavor enhancer। ये भाई साहब, अब देखो कभी पूछा जाए MSG एक फ्लेवर एनहेंसर है, हाँ या ना, Yes. Yes, sir. कोई दूसरा नाम पूछे तो याद रखना इट्स अ नियोटेम। चलो मिला एक पॉइंट, कुछ नया, ठीक है, चलिए। Yes, sir. तो सल्फोनामाइड्स पेप्टाइड्स वाली कैटेगरी कंप्लीट हुई, अब आगे और जाते हैं। सो क्लोरोसेक्राइड्स, क्लोरो मतलब तो क्लोरीन अमाउंट ऑफ क्लोरीन कंटेंट होते हैं। सो सुक्रालोज इज वन ऑफ दोस, ठीक है, स्वीट हाई क्रिस्टलाइन वाटर सॉल्युबिलिटी। नाउ दिस इज वन, अदर्स में आपके बचे कुचे, तो जैसे आपका आ जाएगा यहाँ पे काम की चीजें, आपको एक ही काम की चीज है, दैट इज ग्लिसनाइजिन एंड स्टीरियोसाइड, बिटर इंडेक्स, तो ये दो आपकी चीजें, ठीक है, ओके, ऑल गुड, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, अब आएगा हमारा पॉलीऑल्स। तो पॉलीऑल्स आर योर पॉलीमर्स ऑफ अल्कोहल, सम वेरी गुड इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स, ओके, ठीक है। तो सुगर अल्कोहल्स एंड देयर यूजेस, सो जनरली जैसे फ्री ग्लिसरॉल्स दे आर यूज्ड इन वाइन एंड बियर। xylitol, हाइड्रोजनेशन ऑफ जाइलोस में यूज होता है। अब हाइड्रोजनेशन, और इसमें एंजाइम कौन सा होता है, जाइलेज, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, अगर हम लोग अभी आज एंजाइम पढ़ेंगे तो वहां दिख जाएगा। मैनिटोल, हाइड्रोजनेशन ऑफ मैनोस, लैक्टिटोल, हाइड्रोजनेशन ऑफ लैक्टोस, ठीक है। अब इसके यूसेज देखो, सॉर्बिटॉल, ठीक है,
pears, apples और prunes में होता है. Maltitol, hydrogenation of maltose, so इस maltose content. So malt आपका कहाँ बनता है guys? बियर मेकिंग में यूज होता है, आया ना? Yes, Yes, sir. तो ये एक स्वीटनर जो बियर मेकिंग में यूज होता है, उसमें याद रखना आपका माल्टिटोल. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े. yes, sir. फ्लेवर इन द बियर इट इज बिकॉज ऑफ द माल्टिटोल. चलिए अब देखो, ये आपके इंपॉर्टेंट है रिलेटिव सब्सटेंस के, वो कितना परसेंटेज स्वीटर है. अब एक आपको सबसे हाईएस्ट याद रखना है. ओके, दैट इज फ्रक्टोज. ओके, यू कैन सी फ्रक्टोज इज द हाईएस्ट इन एंटायर टेबल. ऑलियोल्स की बात कर रहा हूं मैं. तो फ्रक्टोल, ठीक है, फ्रक्टोल यहाँ से आपका ये आ जाएगा भाई साहब. ठीक है, अभी मैं इसमें तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक, अब यहाँ पे देखो, sorbitol in confection as a emulsifier as a reactant in manufacture of spans and tubes. तो ये emulsifier में भी काम आता है sorbitol. ठीक है, अब what is intermediate food guys? What is intermediate food? Jam, jelly. ठीक है, those are intermediate food. मतलब it contains moisture but it is lower than high moisture and higher than low moisture. ठीक है, intermediate moisture foods means like those foods which should have some moisture so that you will get the particular characteristics of the food like mouth feel etc. वगैरह. जैसे कि bread हो गया, bread is a kind of intermediate food. If the moisture content of the bread is moved out, it is removed, the bread will not taste good. अरे हाँ है ना, dried feel होता है, correct or not? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. केक हो गया आपका, केक इज ऑल्सो हाइजेनर. ठीक है, चलिए क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. चलो देखो, ये आ गए सारे स्वीटनेस की. तो हाईएस्ट आपका कौन सा है? 8000 वाले कौन अंकल है? नियोटेम. Neotem. ठीक है, देखो उसके आसपास में कोई नहीं है. चलो ठीक है, नाउ दैट ऑल अबाउट स्वीटनेस. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 2 बजे के पहले फूड एडिटिव्स खत्म करते हैं. ठीक है, चलो हो गया. बड़े बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म. नाउ इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर एंड थिकनेस. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ये मैंने परसों डेयरी में बोला था कि मैं अगर आइसक्रीम पढ़ाऊंगा तो मेरे को ये थिकनेस और स्टेबलाइजर की इंपॉर्टेंस पता होनी जरूरी है. आया ना? Yes, Yes, sir. sir. तो अब मैं यहाँ देखो, ध्यान से देखना. एक सेकेंड. सूरज इज डन सीरीज 1. हाँ सर. कहाँ पे अपलोड किया? बूस्टर्स में अपलोड किया ना? बूस्टर सीरीज. बूस्टर्स में नहीं किया है, मेरे ख्याल से सेक्शनल में अपलोड किया है उसने. नहीं नहीं, उसको बोल बूस्टर्स में डाले, वहां ही डाले. ओके, बूस्टर्स. ओके. एक मैंने नया वो ही बनाया हुआ है, क्योंकि सेक्शनल वाला क्या है, वो तो मॉड्यूल्स में लिंक है, कुछ फ्री स्टूडेंट भी देंगे ना, तो दैट्स व्हाई यू कीप अंडर दैट सिंस ओनली. ओके ओके, ठीक है. ठीक है, और बूस्टर्स का लिंक डाल देना पब्लिक को, मतलब ओपन लिंक, एक टेस्ट डाल के कर देना. ठीक है, चलिए गाइस. स्वीट स्टेबलाइजर्स एंड थिकनेस. ठीक है, सो वेयर इट इज यूज, बहुत जगह यूज होता है. हेलो, Yes, sir. stabilizer and thickness. Okay, stabilizers and thickness, they are very much important in your any kind of you're making desserts. Okay, or any frozen foods. फ्रोजन फूड्स में जैसे हम लोग आइसक्रीम हो गया. ठीक है, आइसक्रीम हो गया, देन योर फ्रोजन डेजर्ट्स हो गए, वगैरह वगैरह. ठीक है, बहुत जगह यूज होता है. नाउ स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्सन, सस्पेंशन एंड फॉर्म फॉर जनरल थिकनिंग प्रॉपर्टीज. अब जैसे स्टेबलाइजर्स, आपका करी पाउडर भी होता है. ठीक है, 2 SAR 1. अब जैसे बहुत सारे लोग देखा होगा, जैसे जो चाइनीज आइटम्स है, आपका चाइनीज करीज वगैरह एक्सेट्रा, दे यूज कॉर्न फ्लावर समटाइम, देखा होगा ग्रेवी बनाने के लिए. Yes, Yes, sir. Corn. sir. Yes, sir. व्हाट आर दोस? दे आर नथिंग, दे आर थिकनेस. करेक्ट? Yes. Yes, sir. This corn flour, can I say this thing is coming from the carb zones or saccharide zones, और सर ये आपके आपके स्टार्च बेस्ड में आ गया, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Starches में होता है. ठीक.
दो थिंग्स। अब ध्यान से कनेक्ट हो रहा है कि डॉट कनेक्ट होना चाहिए, मजा आएगा। ठीक है, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शन, सस्पेंशन एंड फॉर्म्स फॉर जनरल थिकनिंग प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट क्लियर है। नाउ कार्बोहाइड्रेट में आपका गम है, रबी गौर गम, सीएमसी, कार्जियना, अगर, स्टार्च, पेक्टिन वगैरह। आप सीएमसी कनेक्ट करो गाइस, 3 दिन पहले बताया था सीएमसी का यूज, याद आया? सर वे एक्सट्रैक्ट करने में यूज करते हैं हम लोग इसको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो प्रोटीन्स, जिलाटिन फ्रॉम कोलाजन। अब ये प्रोटीन अभी याद रख लो, जिलाटिन वगैरह कुछ होता है, जो हम लोग मीट पढ़ेंगे ना तब ये प्रोटीन, ये जिलाटिन को अच्छे समझ जाऊंगा कहाँ से कैसे। ठीक है, नाउ हाइड्रोकोलाइड्स तो इंप्रूव टेक्सचर, इनहिबिशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शन एंड फॉर्म्स एंड इंप्रूवमेंट्स ऑफ आइसिंग्स वगैरह। अब देखो ये बेसिक्स बात है। अब हम लोग थोड़ा हमारे लेवल की बात करते हैं। ठीक है, विल टॉक अबाउट समथिंग एट आवर लेवल। थिंग इज लाइक स्टेबलाइजेशन एंड थिकनेस। अब देखो आइसक्रीम में क्या होता है, व्हेन यू मेक आइसक्रीम्स यू हैव स्किम मिल्क, यू हैव क्रीम, यू हैव शुगर, ओके, एक्सेट्रा चीज। अब देखो व्हेन देयर इज हाई अमाउंट ऑफ शुगर इज कमिंग and skim milk is then cream is there, when sugar gets in there, so what happens, your ice cream become more wetty type of thing, okay, and when it is more wetty type of thing, when you freeze it, the chances of getting grittiness is very high. Grittiness, if grittiness is very high, then what we do, that's why we are using stabilizer to prevent the grittiness. आपको कौन सी आइसक्रीम अच्छी लगेगी? ग्रीटीनेस मतलब जो जिसमें like particularly what to say, have you seen like you are keeping milk in your home fridge and frozen it, okay, freeze it, and the ice cream you're bringing for market, there's a difference. You can see the smoothness is very low in your homemade versus the one you are having with the this Yes, thing. sir. Yes, sir. Yes, sir. One thing is because of the stabilizer and another thing is the airing, okay, air. Hello, Yes, sir. presence of air in that. Okay, so generally, what your milk is having, what ice cream you are having from the outside, it is 40 to 50% only your milk mix is there or ice cream mix is there. Rest all is air. ठीक है, चलिए अब Yes, देखो sir. ये एक यूज है स्टेबलाइजर का, यूज आ गया थिकनेस। समटाइम थिकनेस वी आर यूजिंग टू गेट द certain amount of thickness or particular certain amount of viscosity in the milk, in the ice cream to meet the particular layer of your air mixture in that. Clear है? Yes, ठीक, sir. अब Yes, sir. बाकी चीजें मैं आइसक्रीम पढ़ाऊंगा ना तब याद आएगा। तो इसमें हम लोग थिकनेस, अभी मैंने तुमको बेसिक बताया क्या है थिकनेस के बारे में, इसके कुछ एग्जांपल्स है, देयर विल सी इन द फर्दर सेटअप्स। ठीक है, चलिए तो सम मोस्टली आइसक्रीम में आपका सीएमसी एंड जिलेटिन आर यूज्ड, ओके। जिलेटिन, अब देखो तुमने आइसक्रीम कभी देखी होगी या मतलब जिलेटिन रोल्स टाइप होती है आइसक्रीम, सुना है नाम जिलाटो? Yes, sir. Yes, sir. So they have higher amount of this thickening agents. बस ये डिफरेंस क्लियर आ रहा है, कुछ समझ में क्लियर Yes, पॉइंट? हाँ sir. ठीक है, अब नाउ कमिंग टू द इमल्सिफायर्स। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा गेम आने वाला है। देखो लेसिथिन, अब देखो नेचुरल सिंथेटिक, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, और ये यूसेज कहाँ कहाँ आते हैं, इसके कनेक्शन बहुत तगड़े होते हैं। रिमेम्बर इस प्रिंसिपल्स एंड यूसेज। तो देखो एरेशन, अब एरेशन की जैसे हमने बात की, डू यू गाइस रिमेम्बर अबाउट आइसक्रीम? आइसक्रीम में एरेशन होता है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. होता है. ठीक है, और आइसक्रीम इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, स्किम मिल्क एंड क्रीम ओके, Cream. क्रीम इज फैट एंड स्किम मिल्क हैज हाई अमाउंट ऑफ वाटर। जहाँ पे वाटर और मिक्सचर आता है, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ, देयर इज क्रिएशन ऑफ इमल्शन। अरे हाँ यार, देयर वी Yes. विल Yes, sir. यूज। ठीक है, करेक्ट। अब लेसिथिन सर नेचुरल है, कहाँ पाया जाता है सर? मिल्क में, हाँ या ना? Milk. Egg. Yes, sir. Egg में. मिल्क में और वगैरह। ठीक है, also oil में भी. हाँ ठीक। तो यूसेज में क्या क्या, चॉकलेट कोटिंग्स ऑफ कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम्स। ठीक है, अब मायोनेज। अब इसका फंक्शनलिटी देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट इज फंक्शनलिटी, इट्स यूज इन रियोलॉजी और रियोलॉजी मॉडिफिकेशन। रियोलॉजी मॉडिफिकेशन मतलब आपका इट इज लिटरली द फ्लोवेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, ओके। सो आइसक्रीम हैज सम फ्लोवेबिलिटी वगैरह वगैरह। ठीक है,
सो फ्लोवेबिलिटी में इम्पैक्ट करेगा एरेशन. सो wherever I have marked the first letter or the entire word as bold, those point you have to remember for longer duration. That is like lecithin is used in your ice cream making and all, and the major purpose is the aeration system. Clear है? Yes, sir. Now mono and diglyceride, these are synthetic. Okay, diglyceride and monoglyceride. यूसेज कहाँ का है? कब बेक्ड गुड्स, आइसिंग वगैरह वगैरह. अब देखो बेक्ड गुड्स में हम लोग क्या करते हैं, कभी देखो बटर एंड शुगर भी मिक्सिंग. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. उससे शॉर्टनिंग बनाते हैं. देन वी मिक्स विद डो, मतलब योर व्हीट एंड देन वाटर. सो वहां पे आपका इमल्शन बनेगा बिटवीन वाटर एंड योर शॉर्टनिंग्स. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, and that butter and all mixture, the dough you are forming, it will create some aeration system in it. एयर बनता है, देखा होगा आपका स्पॉन्ज सिस्टम बनता है. दैट इज द वन ऑफ द रीजन कि emulsifier will create that sponginess and all. Why? Because of the function of aeration. क्लियर है? आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now coming to lactame. Lactame is lactic acid ester और मोनोडाइग्लिसराइड. अब मोनोडाइग्लिसराइड जैसे ही समझ में आया आपका लैक्टेम वगैरह, so it is what again, it is a synthetic. आया ना? Yes, sir. अब देखो जहां डाइग्लिसराइड और ग्लिसराइड्स क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज टू फंक्शन. फॉर्म डेवलपमेंट एंड एरेशंस. अब देखो इसका कनेक्ट करूंगा मैं, देखो ध्यान. ग्लिसराइड आ रहा है कहीं पे, या ये आ रहा है, ठीक है. तो देखो यहाँ पे एरेशन आ गया ग्लिसराइड्स में, एरेशन आ गया ग्लिसराइड्स में. ठीक, कूल. अरे हाँ या ना? Yes, sir. सॉरी. चलिए इतना सारा पॉइंट क्लियर है. अब देखो इथाइल ऑक्सीडेटेड मोनोडाइग्लिसराइड. अब देखो याद कौन कौन से रखना है. यू टू रिमेंबर लैक्टेम, मोनोडाइग्लिसराइड, लेसिथिन, ठीक है, डेटम एंड एसएसएल. एसएसएल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एसएसएल का यूसेज. अब देखो डेयरी मतलब आइसक्रीम में, ठीक है, बेटर्स बेटरोल्स. तो जहाँ पे आपका इधर है population. चलो, तो एसएसएल वगैरह ये है, ठीक है. एज गन व्हेन यू आर रीडिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. ओके, चलो गाइस, हेलो. So emulsifier will be the last, then you will be having the 5 minutes booster test. ठीक है, ready हो? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है. So emulsifiers, okay, functions वगैरह, देखो बहुत सारी चीजें. अब देखो इतनी सारी चीजें हैं. Everything has been compromised and brought to this point. तो मैंने तुमको मेन चीज समझा दी क्या है, क्या स्क्रीन है उसका, क्या समझना है. नाउ देखो डो कंडीशनर, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एसएसएल. ओके, डो कंडीशनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. देन ethyroxyl monoglyceride and DTM. This is very important for dough conditioning. Whenever you are doing dough conditioning, these three emulsifiers are used. Okay. Aeration, तो aeration के लिए PGME, SSL, lactam, lecithin and monoglycerides. These people are used. Okay. क्रम सॉफ्टनेस के लिए PGME, SSL, मोनोडाइग्लिसराइड, डेटम एंड इंडक्ट. ठीक है. तो ये दो भाई साहब एरो, ये एरेशन एंड क्रम सॉफ्टनेस, दे विल हैव सिमिलरिटी मोर. ओके, जो एरेशन करवाएगा वो भी वही क्रम सॉफ्टनेस बनाएगा. देखो PGME इज देयर, PGME इज देयर, SSL इज देयर, SSL इज देयर, मोनोडाइग्लिसराइड इज देयर, इज देयर. ठीक है. दिस आर द थिंग्स. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. लिंक हैज बीन शेयर्ड इन द चैट बॉक्स. जाइए जल्दी. विल मीट अगेन एट 1:30. ठीक है. और ये 1:30 में हम लोग टेस्ट डिस्कस करेंगे, देन विल मूव फॉरवर्ड. क्लियर है? आगे बढ़े. Yes, sir. चलिए, सर लिंक कहाँ आया है? ग्रुप में डाला हुआ है, भेज रहे हैं.
Hello, did you got? I'm sharing here also. Yes, sir. Hello, can you access?
अरे कंप्लीट हुआ? किस किस का हो गया पब्लिक? Yes, sir. Yes, sir. sir. +1 करो जिन जिन का हो गया है. सूरज, give me the list also, okay, after this is done. ये टेस्ट कंप्लीट होने के बाद? हाँ, ओके ओके मार्क्स एंड लिस्ट. चलो मार्क्स वार्क्स छोड़ो, कोई नहीं. ठीक है, मन्ना को बोल देना कि से द नेक्स्ट टेस्ट एट 2 o'clock. ओके ओके ठीक है. Guys, there is one problem, okay? Current is gone and I have my battery at 53%. अगर करंट आ गया तो we will continue, otherwise it will end sometime, I don't know, कभी भी end हो जाएगा. ठीक है, let's maximize it here. ठीक है, चले. Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों ने टेस्ट दे दिया, मजा आया, दिमाग खुला. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, कीप योर स्कोर्स विथ यू. वी कैन स्टार्ट करें. शिखा, देन प्रियंका एंड ऑल. Yes, sir. हाँ सर. हो गया टेस्ट सबमिट? Yes, sir. चलिए, अब देखो एंटी केकिंग एजेंट. तो एंटी केकिंग एजेंट का मेन फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द केकिंग. अब देखो, कभी भी एंटी केकिंग की बात करें तो सिंपल है, सिंपल है. जब भी एंटी केकिंग की बात आए, सीधा आंख बंद करके आपको लिखना है कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स एंड सिलिकेट्स और मेरिस्टिकेट्स. इन चारों, ओके, सीपीएसएम, सीपीएसएम के सॉल्ट्स, किसके साथ? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इन तीनों के साथ सॉल्ट्स. ठीक है, तो सीपीएसएम, कार्बोनेट्स, phosphates, silicates and your myristicates. अब इसमें मेन कौन है एंटी किकिंग एजेंट में? whenever talk about main, it is your carbonates and your silicates. Okay, this is your very important. Clear है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है. नाउ अब आगे देखते हैं. देखो, एंटी फॉर्मिंग एजेंट, so it retards and hinders the degenerative changes in forming forms. Okay, very important forms. So एक second. ठीक है, नाउ एंटी केकिंग एजेंट हो गया, ये हो गया. ऑल्सो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम वगैरह वगैरह. ठीक है, एंटी फॉर्मिंग. नाउ दिस कमिंग टू द फ्लेवर एनहांसर. तो फ्लेवर एनहांसर में थोड़ी देर पहले हम लोग बात की थी. व्हाट वाज दैट? नियोटेम के बारे में बात की थी. दिस इज वन ऑफ टाइप ऑफ फ्लेवर एनहांसर. करेक्ट है? Yes, sir. अब एक एमएसजी हो गया विच इज यूज. ओके, ठीक है. अब देखो ये सब ठीक है. फ्लोर एनहांसर, नॉट फ्लेवर एनहांसर, सॉरी, माय बैड. तो फ्लोर एनहांसर आर यूज्ड टू improve the quality of your floor. Okay, दिस आर जनरली बहुत टाइप के होता है. ब्लीच्ड, ओके, ब्लीचिंग के फॉर्म में होता है. देन योर, अगर कोई फ्लोर थोड़ा मैच्योर्ड लग रहा है और थोड़ा स्मेल आ रहा है, देन वी विल बी यूजिंग फ्लोर एनहांसर. स्टोरेज के कारण कुछ डिफेक्ट्स होता है, जैसे डिफेक्ट्स लाइक ऑक्सीडेशन हो गया आपका फ्लोर में, दैट विल क्रिएट सम ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स. यू नो ना, फ्लोर जर्म होता है आपका, जर्म होता है वीट में, राइट? If that also get Yes, sir. crushed and come in the wheat flour, then there is a lipid content is there in the flour. So those, when it comes in contact with oxygen and light, it creates rancid flavor. आया ना? ठीक है, Yes, sir. Sir. कलर आ रहा है वगैरह, तो बहुत देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर एनहांसर. तो एक आपका ब्लीचिंग पाउडर. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? ऑक्सीडेशन ऑफ येलो कैरोटीन पिगमेंट्स को ऑक्सीडाइज करेगा वो, एंड मेक द पर्टिकुलर फ्लोर कलरलेस. ओके, मैच्योरेशन ऑफ फ्लोर, माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड एसएच ग्रुप, अमीनो एसिड. ओके, सिस्टीन. एक होता है आपका, दो टाइप के अमीनो एसिड से व्हिच आर इन सल्फर ग्रुप, दैट इज वन इज द व्हाट, मेथिओनिन, अनदर इज द सिस्टीन. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो जनरली व्हाट हैपेंस, दिस थिंग मैच, जब आपका डो फॉर्मिंग होता है ना, डो फॉर्मिंग, सो दिस टू सी एम एंड सी, दिस टू गाइस, इट विल क्रिएट अ सल्फर सल्फर बॉन्डिंग. ओके, and which makes the dough very what to say, very spongy and very structurized, very, very good form dough. Okay, that is like when you are using flour enhancer, it will increase the what to say, doughability. It's very, 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 very soft and it will need more things. Why? Because of the formation of protein disulfide bond formation, and it creates the dough very strengthened. Okay, that is one thing. Now
inactivating the proteolytic enzyme activation. Now you know, like wheat flour or any other flour, they are having good amount of protein like gluten and glutamine and etc. Correct or not? Yes, sir. Yes, sir. So some enzymes are there. So what happens when you are using flour and enzyme? It will deactivate those enzymes, okay, and create that. So rendering the proteolytic enzymes inactive, which otherwise break down the gluten network during the fermentation stage, resulting in weaker dough impairing its bread. ठीक है? तो चार मेन फंक्शंस हैं फॉर योर फ्लोर एनहेंसर्स. ओके, सो व्हाट आर दोस फ्लोर एनहेंसर्स? लेट्स टॉक अबाउट इट. एक आपका ब्लीचिंग का है, ठीक है. अनदर इज फॉर ऑक्सीडाइजिंग दोस थिंग्स, ठीक है. दैट इज द मैचुरेशन प्रॉपर्टीज में सल्फर सल्फर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग अच्छे बनाने के लिए फॉर द डो प्रॉपर्टी इंक्रीजमेंट, ठीक है. अनदर इन डिक्रीज degrading of proteolytic enzyme. These are the four functions which are there, ठीक है. So as per the functions we can see here, low molecular weight, ब्लीचिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, सर्फेक्टेंट, एंजाइम्स, ठीक है. तो बेंजोइल पेरोक्साइड्स, क्लोराइड डाइऑक्साइड, क्लोरीन एक्सेट्रा, ठीक है. दो सार. अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग एजेंट्स फ्लोर एनहेंस में कभी भी बात करें, ऑलवेज रिमेंबर क्लोरीन एंड क्लोराइड्स, क्लोरीन एंड क्लोराइड्स. तो ब्लीचिंग बीसी, ओके, बीसी ब्लीचिंग क्लोराइड्स, रिमेंबर इन दैट वे, ब्लीचिंग chlorides, okay, or chlorine, these two are there. Now oxidizing agent we are using for the second one, that is your maturation of flows, okay, ठीक है. Yes, sir. नाउ इसके लिए आपका पोटेशियम ब्रोमेट पहले यूज होता था लेकिन नाउ इट्स बैंड, ओके. नाउ इसकी जगह एजो डाइकार्बोमाइड दैट इज यूज्ड एस्कॉर्बिक एसिड. सो एस्कॉर्बिक एसिड इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट वी हैव seen before, okay, ठीक है. नाउ रिड्यूसिंग एजेंट, cysteine hydrochloride and sodium metabisulfite. देखो cysteine hydrochloride, this also contains sulfur, हाँ या ना. sodium metabisulfite, this also contains sulfur, so it will enhance the floor durability, ठीक है. क्लियर है. surfactants, so GMS, SSL, datam, lacting. अब देखो, अब कुछ लोग पागल हो जाएंगे, सर हमने कहीं नहीं देखा है, सर GMS, सर SSL, सर datam lecithin, ये गाइस क्या है? इमल्सिफायर है ना, हाँ या ना. Emulsifiers. Yes, sir. Yes, sir. अब इंजाइम्स तो अल्फा अमाइलेज, प्रोटीएस, लिपोप्रोटीनेज एक्सेट्रा, ये क्या करेंगे? ये आपका ये वाला काम करेंगे. द लास्ट वन दैट इज द प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गुड डो, ओके, उसके लिए काम आएगा. ऑल गुड. तो दिस आर काइंड ऑफ योर नथिंग, इट्स लाइक लीविंग एजेंट में भी आपको काम आएगा और एनहेंसिंग द टेक्सचर, टेक्सचर काम में भी ये होता है. ठीक है, क्लियर है. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes. चलिए, नाउ एंटी किकिंग एजेंट्स. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंटी किकिंग एजेंट हमने वो आगे भी देखा था, लाइक पीछे एंटी किकिंग एजेंट में सिलिकेट्स के बारे में बात किया था, करेक्ट और नॉट. Yes, sir. अब बेंटोनाइट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंटी फंगल, एंटी फंगल में नेटामाइसिन, मोल्ड इनहिबिटर बहुत सारे हैं, लेकिन नेटामाइसिन इज यूज्ड वेयर गाइस? चीज, हाँ या ना. Pure cheese. हाँ, क्योर चीज. नाउ एंटी फॉर्मिंग एजेंट, तो वाटर बेस्ड सिलिकॉन इमल्सन, तो दिस इज वन ऑफ थिंग. एंटीबैक्टीरियल भर भर के पड़ा है, ठीक है. तो हियर हमारा फूड रेड्यूस खत्म हुआ. 2 घंटे की कहानी एंड्स हियर. ऑल गुड. मजा आया. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. प्राची क्लियर. तो बहुत डर लग रहा था फूड रेड्यूस, अब आया क्लियर समझ में अच्छे से. कूल. ऑल Yes, गुड. sir. Yes, sir. चलिए, यहाँ पे एक टॉपिक फिनिश हुआ, आज का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा, ठीक है. नाउ कम टू द डेयरी अगेन, ठीक है. डेयरी में बात करना, ठीक है. तो लेट्स गो विद द डेयरी ओनली. डेयरी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, डेयरी फिनिश हो जाएगा. सूरज, कौन सा चैप्टर रिलीज हो गया है, मतलब कौन सा टेस्ट रिलीज हुआ है? कार्ब्स और प्रोटीन. कार्ब्स एंड प्रोटीन. एक काम करते हैं, तो पहले अपन एक बार टेस्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, किसका? डेयरी का. उसके बाद तो admin
टेस्ट दिख रहा है गाइस स्क्रीन पे? Yes, sir. दिख रहा है सर। चलिए बोलिए, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। Bacterial load. Bacterial load. अरे भाई ये क्या हुआ? अच्छा प्रॉक्टरिंग लगा रखा है क्या गाइस? यस अरे सर। अच्छा, हम भी बड़े वाले हैं। किसी जिसने टेस्ट दिया है उसी की आईडी से स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ठीक है कोई नहीं यार। चलो, सैंडीनेस इन आइसक्रीम इज मेनली कॉज बाय, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था। The lactose Lactose. stabilizer. चलो, Sir, salt in cheese making is used to what? Effect of growth of molds or increase the rate of loss of weight. हम्म सर इसमें ब्लू वेन चीज लिखा है, एक बार ये एक्सप्लेन कर दीजिए। ब्लू वेन चीज लाइक ग्रोथ, मोल्ड ग्रोथ हमारा कहाँ होता है? आपको याद है प्रोपियोनिक बैक्टीरिया? अरे स्विस चीज के बारे में बात किया था थोड़ी देर यस पहले सर। हमने, ब्लू ग्रीन मोल्ड के बारे में बात किया था। व्हाट वाज दैट? पेनिसिलियम, राइट? यस सर। ठीक है, तो उसके ग्रोथ मोल्ड इनिबिशन में काम आता है, हाँ या नहीं? बोला था ना? यस सर। चलिए, which of the following plays an Sir, important amino sir, acid अमीनो conjugate एसिड। type. sir, ठीक है, रोपिन स्लाइम इज इन डेयरी प्रोडक्ट इज कॉज्ड बाय अल्काजिनस एक्सकोलैक्टिस, करेक्ट? और Enterobacter aerogenes. एंट्रोबैक्टर एरोजेनिस दोनों हुआ क्योंकि इट्स अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर है? अब ये बताओ, ठीक है, येलो, येलो कौन है सर? हमको येलो पता है हमेशा, येलो इज Sir, व्हाट? A होगा आंसर। येलो किसका कौन देता है? सर ए फ्लोरोसेंट? ऑप्शन। Shinjantha, Pseudomonas Shinjantha. करेक्ट। सिंसेनिया क्या देता है? ब्लू, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। सर। तो बी का एनी फोर और फाइव एनीथिंग होगा। ये हम लोगों को सबसे अच्छा है रेड वाला रसेरासिया मार्सिनस, तो डी का थ्री, डी थ्री इज योर ओनली वन, दैट इज ऑप्शन ए, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। चलिए, देन दिस सेंट्रीफ्यूज वगैरह वगैरह हमको सबसे इजी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर होमोजेनाइजेशन। व्हाट इज होमोजेनाइजेशन इन दिस? नहीं है? Sir, dispersion of one of the liquid phases, one होगा उसका। ठीक है, यूएचटी प्रोसेसिंग, एसेप्टिक पैकेजिंग, UHT septic packaging, sir. करेक्ट। सी टू, देख लो कहाँ मिल रहा है तुमको सी टू, डी ऑप्शन। Yes, sir. यस सर डी ऑप्शन। Yes. ठीक है, एमबीआर टेस्ट इज डन फॉर व्हाट? Bacterial load. बैक्टीरियल लोड। Alcohol ulcerin test is done to identify what? Sir, heat stability or pH. स्टेबिलिटी। Really? sir, इसके पीछे का एक बार कॉन्सेप्ट बता दो। Bacterial load in milk. MBR test is done for that. अरे यार ये क्या हो रहा है? फिर सबमिट हो गया। छोड़ो, चलो तुम लोगों का हो गया था ना? कोई क्वेश्चन में डाउट है बता दो मुझे। कोई डाउट था क्या? हाँ No, सर। sir. क्या कौन सा क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन नंबर बता दो, विल सॉल्व इट। बोलो बोलो बोलो। सर वो सैंडीनेस एंड आइसक्रीम वाला एक बार बता दो, मेरा कनेक्शन चला गया तो वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। सैंडीनेस अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सैंडीनेस मतलब ग्रीटीनेस, ग्रीटीनेस इज फॉर व्हाट? अगर ग्रीटीनेस अगर हो रहा है तुम्हारा, मींस प्रॉपर मिक्सिंग हैज नॉट बीन डन। प्रॉपर मिक्सिंग कब नहीं होगी? जब आपका शुगर कंटेंट हाई होगा, दैट इज लैक्टोज प्रेजेंट, ओके, एंड emulsifier is not there, so the option will be x, and x will be your lactose, y will be your emulsifier। पब्लिक यही है ना आंसर? Yes, sir. ठीक है चलिए। स्टेबिलाईजर
स्टेबलाइजर था कि इमल्सिफायर था? स्टेबलाइजर था sir। ठीक है, कूल। चलिए हम लोग, सर एक और क्वेश्चन था स्टेबिलिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी का लेके। हाँ क्या था? सर इसमें मेंशन्ड है which statement is correct? Specific gravity of milk decreases after some time of milking. Specific gravity increases after some time of milking. Acidity of milk decreases then starts increasing after some time of milking. एक बार ये एक्सप्लेन कर दीजिए। एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी आपकी बढ़ेगी क्या? यस बढ़ेगी, बट घटेगी, बढ़ेगी कभी नहीं। ठीक है, एसिडिटी डिक्रीजेस बट इट वॉन्ट इंक्रीजेस लेटर ऑन। एसिडिटी में क्या होगा, आपका पीएच कंटेंट, सॉरी माय बैड, पीएच विल गो डाउन बिकॉज व्हाई, अभी देखो रहा हूँ, तो एक इमेजिन करना ओके उस चीज को। स्क्रीन विजिबल है? देखो इनिशियली यस क्या सर। होता है, मिल्क का पीएच तुम्हारा क्या आ रहा है, नियरली 6.5 6.6 के आसपास। व्हाट हैपेंस, मिल्क कंटेन लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया, ओके, उसमें लैब वाले भाई पौधे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड एज द मिल्क में लैब की प्रेजेंस बढ़ेगी, व्हाट हैपन, योर लैक्टोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, आया ना? यस सर। तो लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा ये पीएच इंक्रीज हो रहा है। पीएच घट रहा है और एसिडिटी बढ़ रही है, करेक्ट है ना? Yes sir। यस सर। तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट इट विल डिक्रीज देन इट विल इंक्रीज। डिक्रीज तो होगा ही नहीं भाई, एसिडिटी घट तो सकती ही नहीं, इट विल इंक्रीज ओनली बिकॉज लैब कंटेंट विल ग्रो ओनली। ओके सर। ठीक है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग आ गया वहां पे। अब ऐसा ही स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करें। स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपका एज द रेफ्रिजरेशन, तो वो उसमें चीजें बहुत अलग होगा। देखो अब रेफ्रिजरेट स्पेसिफिक ग्रेविटी में, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिरती है, कारण बताओ। देखो आपका प्रोटीन है, अगर प्रोटीओलिटिक डैमेज हो रहा है तो प्रोटीन का स्पेसिफिक ग्रेविटी गिरेगा क्योंकि आपका प्रोटीन कंटेंट कम हो रहा है। सेम फॉर लिपिड्स, हमने थोड़े दिन पहले बात किया था, फैट का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी था 0.93, यस और नो? यस सर। और 9 पे ऐसा कुछ होता है। So if your fat content is decreasing because of the lipolytic actions, then this will also go down. So specific gravity will go down with the time. यही ऑप्शन में है क्या कहीं पे? यस सर ये है। ठीक है, आई थिंक यू नाउ कनेक्ट करो भाई तुम लोग, अब तो सेल्फ सफिशिएंट हो गए हो, कनेक्ट करो, देखो खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, सर चलो चलो। उसमें पूछा है आफ्टर मिल्किंग स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज करता है। इंक्रीज हो रहा है क्या? यस सर करेक्ट आंसर में इंक्रीज मेंशन्ड है। आ रहे हैं, देखो उस पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, अब microbes also have some density and some weight, आया ना? यस सर। आया ना? यस सर। अब एनी मिल्क, अब देखो माइक्रोब का डेंसिटी पता है, जनरली बैक्टीरियल का डेंसिटी क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी वाले लोग बोलिए। हेलो, यस सर। बोलो बोलो। सर 600 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट। डेंसिटी, करेक्ट, हाँ। हेलो, यस सर। अब जो तुम्हारे माइक्रोब्स है, ओके, दोस आर नियर टू वन, ओके, दोस आर नियर टू, ठीक है, उनकी एस जी, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर किसी मिल्क में आपको पता है विद द टाइम द माइक्रोबियल कंटेंट इन मिल्क इज गोइंग 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 इट विल ग्रेड, ठीक है। और आपकी अगर ये आपके पैरामीटर्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड्स और प्रोटीन, इट विल डिक्रीज, ठीक है। अगर लेट्स से आपका ओवरऑल फॉर योर लिपिड्स एंड प्रोटीन 10 पॉइंट गिरा है, ठीक है, वेर एज माइक्रोब्स इंक्रीज हुए आपके हंड्रेड्स। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव है नेगेटिव, डिफरेंस डेल्टा क्या होगा आपका, हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, करेक्ट? पॉजिटिव। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। Microbial population will increase and it will also contribute, any cell which is increasing which will contribute to certain amount of your specific gravity, that's the difference, और उनका कोई density होगा, that's why, is that clear प्राची? यस सर। यस सर। बेसिक यस यार, सर। तुम कनेक्ट करो आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट।
ठीक है, ऑल गुड। चलो चलो, अभी दूसरा टेक हम लोग लेते हैं। अब कौन सा टॉपिक बोला था मैं? फूड एडिटिव्स हो गया, देन डेयरी। हाँ, हमने बोला था डेयरी कंप्लीट करेंगे अभी। डेयरी करेंगे, चलो डेयरी कर लेते हैं। भाई कल भी क्लास लेंगे अगर आज ये कंप्लीट नहीं हुआ तो, क्योंकि करंट अभी तक वापस नहीं आया। क्या हो रहा है भाई? मिल्क प्रोडक्ट्स, ईयरफोन्स। पैकेजिंग मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, राइट? No, sir. नो सर। ठीक है, ये पढ़ाना है, मजा आएगा इसमें। ठीक है, चलिए, ये हो गया था, ये सब हो गया था, राइट? Yes, sir. होम पीएस, ठीक है, सब कुछ हो गया था। क्रीम हो गया था। तो fermented से शुरू करना था. हम्म, ठीक है, योगर्ट। So what is the difference between yogurt and your curd? So curd and yogurt में the major difference is curd में is basic only you are making, but yogurt it will have live bacteria. ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, Yes, set sir. type, incubation and cold and still type, incubation tanks वगैरह, drinking type is like drinking type में आपको पता होगा, एक होता है याकुल्ट, करेक्ट? तो दूसरा लाइक यस सर। कंसनट्रेटेड आपका होता है, जैसे अब मदर डेयरी के हो गए, या आप जर्सी वाला, बहुत सारा देखे, ठीक। फ्लेवर्ड योगर्ट आ जाते हैं, सो सम यू आर पुटिंग लाइक, एक होता है फ्रेंच ग्रीक योगर्ट, देन अदर लाइक सम फ्लेवर्ड योगर्ट्स आर देयर, करेक्ट? ठीक है ना, वो बेसिक है। अब योगर्ट में आपको क्या देखना है, काम है, हमको देखना है इसमें माइक्रोवेल कल्चर। कल्चर तुमको मैंने याद करवा दिया है कि बेसिक दो स्वीट कटलिंग वाले प्लस थर्मोफिलस, बुल्गारिकस, डेलब्रूकी एंड एसिड, Delbrucky acidophilus. करेक्ट? नाउ कैफिर, तो कैफिर में आपका कैफिर ग्रीन्स। अब कैफिर और क्यूमिस में लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो, इसमें ध्यान से देखो। अब क्यूमिस इज अ सेल्फ फर्मेंटेड लैक्टिक एसिड अल्कोहल, ठीक? सेल्फ फर्मेंटेड lactic acid fermented milk, whereas kefir also contains alcohol, but kefir is self carbonated, okay? So आप में ज्यादा, okay, higher amount of alcohol is in your cumis. Kefir that is self carbonated beverage with 2.5%. अब देखो, कुछ लोग कंफ्यूज, सर फर्मेंटेशन दोनों जगह हो रहा है, why alcohol percentage higher in cumis not in kefir? So see, the alcohol which is produced in kefir, what will happen, it will further go oxidation, okay, further fermentation will take place, where an alcohol के बाद में आपका क्या बनता है सर? CO2, हाँ या ना? Yes, sir. So यस सर। those CO, alcohol gets converted into CO2. That's why kefir is a self-carbonated beverage with 2.5% alcohol, whereas kumis is lactic acid alcohol fermented. So it's, अगर कोई पूछे higher amount of alcohol is there, it's in kumis. Okay, clear? Yes, sir. यस सर। For kumis, the culture is your lactobacillus acidophilus and bulgaricus, whereas for kefir, it is streptococcus lactic, kefir bacilli or lactose fermenting yeast. These are the things. Okay, clear है? तो ये basic difference है. Okay, now चीज प्रोसेसिंग, यहाँ पे आपका गेम शुरू होगा। तो चीज प्रोसेसिंग, अब देखो, राइपनिंग ऑफ चीज एंड टाइप ऑफ चीज, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है। अब मेन थिंग, चीज प्रिपरेशन आप बनाते हो तो इट इज बिकॉज ऑफ रेनेट, ओके? रेनेट कंटेन्स टू थिंग, रेनिन एंड पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, इट अटैक्स on kappa and break down the in amino acid bonds, okay, the bonds it breaks. पेप्सिन क्या करता है, it coagulates, ठीक है? गॉट द स्पेसिफिक यूज ऑफ बोथ द एंजाइम्स, क्लियर है? ठीक है,
अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चीज, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि टाइप्स ऑफ चीज, सेमी चीज, सॉफ्ट चीज और ये सब चीज, सेमी सेमी सॉफ्ट, हार्ड, सेमी हार्ड, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, दैट इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, कितना मॉइस्चर, the higher the amount of moisture, the softness, and that's those things. सॉफ्ट चीज में दो टाइप का है, राइपन एंड कॉटेज। ओके, तो राइपन में बेल, ब्राई, कैम्बर्ड, कॉटेज में पॉट, बेकर्स, नटशेल। अभी भाई मत करो, नीचे ट्रिक्स दे रखी है। ओके, सेमी सॉफ्ट में बैक्टीरियल राइपन एंड ब्लू मोल्ड राइपन। अब यहाँ पे आपका आएगा रॉकी पॉट, दैट इज बिकॉज ऑफ द मोल्ड। विच मोल्ड गाइस? पेनिसिलियम। आया ना? हाँ, yes, sir. ठीक है। अब देखो सेमी चीज, तो इसमें आएगा गौड़ा एंड समोसे। हार्ड चीज तो चीदार, स्विस चीज। अब चीदार, स्विस चीज, अब स्विस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, ब्लू आइज बिकॉज ऑफ CO2 गैस एंड अदर थिंग फ्लेवर इन दैट इज अ प्रोपियोनिक बैक्टीरिया। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इस चीज में स्विस चीज हम लोग, अब इन चीज, रैपन चीज और क्योर चीज, दिस आर काइंड ऑफ क्योर चीज ओनली। व्हिच थिंग वी आर यूजिंग? वी आर यूजिंग नेटामाइसिन फॉर मोल्ड इनहिबिशन। व्हाई? अब देखो मोल्ड इनहिबिशन क्यों, अब देखो ध्यान से कनेक्ट करना, सेमी हार्ड, हार्ड, एक्स्ट्रा हार्ड चीज, दे हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। हाँ, अब Yes, sir. मॉइस्चर कम है तो बैक्टीरियल ग्रोथ वैसे ही फ्रीज हो जाएगी, बचा कौन? मोल्ड। मोल्ड ग्रो होगी। हाँ या ना? इफ मोल्ड इज Yes. ग्रोइंग तो मोल्ड ग्रोथ, मोल्ड इनहिबिशन लगाना पड़ेगा। कनेक्ट हो रहा है? कहाँ कहाँ यूज करना है उसको? Yes, Yes, sir. sir. So they are not used for semi soft cheese, they are used for cheese which are having lower moisture content। ठीक है। अब देखो ये ट्रिक है। ठीक है, द ट्रिक इज सॉफ्ट राइपन बेरी ईटन बाय बेल ऑन कैमल नियर कॉटेज ऑफ पोर्ट बैक नट। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा पूरा सॉफ्ट चीज। गौड़ा एंड सैमसन, गौड़ा एंड सैमसन आर सेमी हार्ड हार्टेड। सैमसन, गौड़ा इज वेरी कॉमन, व्हाट टू से, surname in your Karnataka, Kannada region. Okay, Samson, तो you know Sanju Samson, are semi hard hearted. Okay, now hard hairy ने Swiss girl को छेड़ा। ओके, क्लियर? परम हो गया एक्स्ट्रा हार्ड एसिड। ठीक है, तो परम दैट इज अ परमेशन। देखो परमेशन एक्स्ट्रा हार्ड चीज। ओके, गोया, गोया इज योर चीज ऑल्सो। ठीक है, क्लियर? आशिक इज योर आशी होगा। ओके गाइस, Yes, sir. वे चीज, तो वे चीज में आपका मस्कट और रिकोटा, ये दो इंपॉर्टेंट लोग हैं। ठीक है, ऑल गुड। नाउ ये हमारा बात हुआ टाइप्स ऑफ चीज के बारे में, क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. अब मेन है, देखो कोआगुलेटिंग एजेंट, ये सब तो सबको पता है, ये सब चीजें ठीक है। अब यहाँ पे मेन गेम है, कोआगुलेटिंग एजेंट दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन योर कोआगुलेशन, whereas calcium is for your reduction। Yes, sir. Now green color of whey is due to riboflavin, is a type of what? Anthocyanin. ठीक है, renin action takes place on kappa कैसे, rate of renin action is directly due to the kappa calcium। अभी जस्ट मैंने बोला क्लोराइड इज फॉर योर कैल्शियम एंड कैल्शियम कोऑगुलेशन एंड कैल्शियम इज फॉर योर renin action। हाँ या ना? जस्ट सेकंड से आई Yes, टोल्ड। sir. तो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन अगर हायर होगी then the reduction will be very good, that's why we are not pasteurizing cheese making। Also optimum temperature required for effective reduction is 21 to 48 degrees Celsius। सर एक डाउट था। बोलो। सर आपने पीछे मिल्क सीरम का ग्रीन कलर बताया था एंथ्रोसाइनिन के कारण, और तो यहाँ पर riboflavin is a part of bigger category cyanosin। ओके सर, ओके। ठीक है, अब मैं बोलूंगा लाइकोपिन और मैं बोलूंगा कैरोटीनाइड। तो लाइकोपिन तो इसी का बच्चा है। हाँ यार, हाँ सर, ठीक है, Yes, sir. समझ। क्लियर है? सीखा? यस सर, ठीक है। ठीक है, रेनेट कंसिस्ट ऑफ रेनिन व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू क्लोटिंग एंड पेप्सिन व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू प्रोटीलिसिस। ओके, देन मैं गलत बोल दिया। ठीक है, तो क्लोटिंग, कोआगुलेटिंग आपका रेनिन करवाएगा और पेप्सिन करवाएगा आपका प्रोटीलिसिस, दैट इज अ ब्रेकडाउन। ठीक है, आई सेड उल्टा, माय बैड। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. स्टार्टर कल्चर कॉमनली यूज स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमरिस लैक्टिस। देखो ये भाई लोग कौन है, पहचान में आया? स्वीटी फ्लेवर की। हाँ या ना? यस।
ये Yes, sir. दोनों, ये भी उसके साथ में। थर्मोफिलस कौन है सर? सावरनेस के। ठीक है, तो ये SSL वाले लोग, ये आएगा तुम्हारा स्वीट के लिए। क्लियर है? यस सर। अब देखो, हार्डर चीज लास्ट लॉन्गर कंपेयर टू सॉफ्ट चीज। व्हाई? बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट कम है यार। मॉइस्चर कंटेंट कम है तो बैक्टीरियल ग्रोथ वैसे ही स्किप होगी, मोल्ड ग्रोथ हम लोग वैसे भी कम कर देंगे। ठीक है, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये पॉइंट कनेक्ट करना, मोस्ट चीजेस आर विदाउट पास्चराइजेशन। व्हाई? अगर पास्चराइजेशन कर दिया तो CA घट जाएगा, हाँ या ना? कैल्शियम सर गिरेगा, राइट? कैल्शियम यस सर। कैल्शियम डिग्रेडेशन होगा तो क्या होगा आपका? रेनल एक्शन। Renate action कम होगा। एक्शन। करेक्ट। अरे तुम लोग अच्छे से कनेक्ट कर रहे हो यार, खत्म हो गया। ठीक है, द एक्टिव पार्ट इन रेनेट इज काइमोसाइन एंड बोवाइन पेप्सिन। ओके, एंड इट इज टेकन फ्रॉम वेयर सर? यंग काफ। थोड़े दिन पहले बताया था, राइट? Yes, sir. यस Sir. अब देखो, सब्स्टिट्यूट भी बताया था, फाइटिक एसिड फ्रॉम सोयाबीन, फर्मेंटेशन प्रोड्यूस्ड बाय काइमोसाइन, फर्मेंटेशन बाय एस्परजिलस नाइगर एंड क्लोरोमाइसिस। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, क्लोरोमाइसिस और एस्परजिलस नाइगर, ये हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेनेट सब्स्टिट्यूट। इस पे मैंने PPT भी दी हुई है। ठीक है, चलो, ऑल गुड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब चिदारिंग वगैरह, ये बहुत सारी चीजें एक एक स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स में बता रखा है, पढ़ लेना, हो जाएगा गेम। आगे बढ़ते हैं, बटर प्रोसेसिंग। ठीक है, बटर प्रोसेसिंग में डेंसिटी वगैरह, ठीक है, राइपनिंग इज डन बाय कल्चर ऑफ स्ट्रेटोगेरस लैक्टिस इन क्रीमोलिस। देखो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जहाँ पे कम सवर्नेस वाली चीज है वहां पे डायरेक्टली हमको पता है लैक्टिस और क्रीमोलिस होता है। समझ में आ रहा है ना? SSA वाले लोग यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे कम Yes, सवर्नेस। sir. यस Yes, सर sir. यस। एवरीवेयर यू कैन कनेक्ट इट वेरी इजीली। अब जहां पे तुमको कर्ड सॉवरनेस दिखता है, तुम लोग वो 3 यूज याद करते हो: थर्मोफिलस, बुल्गारिकस, डेल्ब्रूक। एसिडोफिलस। Acidophilus, Acidophilus delta. Delbrucky. ठीक है, तो टी बैड इज कमिंग वेयर सॉवरनेस इज देयर। ठीक है, क्लियर? और SSL आपका जहाँ पे सॉवरनेस नहीं है। ठीक है, now primary milk is milk fat, butter, fat plus moisture plus sweetener, that is your milk butter. Okay, now most butter is converted to ghee। अब कौन सा बटर आपका है? ये व्हाइट बटर होता है। ठीक है, देसी बटर, प्रोडक्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम क्रीम, ये हमारे घर में जो बनता है ना, व्हाइट यस बटर, सर। व्हाइट, दैट इज योर देसी देसी बटर। फाइन। थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है और ऑलरेडी सब कुछ इस ग्रंथ में दिया हुआ है। तो अब ये आपका जो 8 नंबर पॉइंट है, 9 नंबर पॉइंट है, दो साल वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ color varies from yellowish to white to deep yellow. The yellow color is from pigment carotene। ठीक है, तो ये फीड से आता है, derived from the feed which feed you are feeding। For uniformity of color, synthetic carotene is added to the cream। अब synthetic carotene कौन सा है आपका? यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं बटर के लिए। कौन सा यूज करते हैं गाइस? बोलो, which color and we are using for butter? Anato. Correct, annatto is a natural coloring agent, हाँ या ना? ठीक है, Yes. नो सिंथेटिक मतलब हम लोग उसको लैब में वापस डेवलप एक्सट्रैक्ट करने के बाद सो एनाटोल इज यूज। ओके, churning, so the nature of violent agitation of FGM which is eliminated in buttermilk, FG clump। So what is FG? Fat globules. Blood globules। Correct, correct। So we are making oil water emulsions convert to water oil emulsions। ठीक है, वाटर इन ऑयल। सो हम लोगों का मिल्क में क्या होता है सर? ऑयल इन वाटर होता है। ऑयल करेक्ट, इन वाटर। बटर एंड घी बोथ आर योर वाटर इन। नाउ टेम्परेचर लॉस, द ब्लेंडिंग ऑफ सॉइल। ओके, खत्म। ये बेसिक चीजें थी। आप जो भी ये लोग पढ़ लिया होगा ना इजरन, बहुत इजी लग रहा होगा आपको वीडियो। ठीक है, घी प्रोसेसिंग। अब घी प्रोसेसिंग में मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है is your how much percent fat should be there? Okay, 99.5% fat, and what is the temperature you are heating on? Okay, that is the main thing, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। And if anyone asks which preservative is used, BHA। BHA is what guys? Antioxidant। ठीक है, हम Yes, लोग sir. कोई प्रिजर्वेटिव उसमें ये नहीं डाला है, सो वी कांट से डायरेक्टली द प्रिजर्वेटिव इज एन एंटीऑक्सीडेंट व्हिच इज यूज्ड टू एक्ट एज अ। ठीक है, कोई माइक्रोबियल एक्शन के लिए हम लोग नहीं डाल रहे हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो ये सारी बेसिक चीजें पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे आएगा नॉन डेयरी इंग्रेडिएंट्स वगैरह में। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया तो वही का था। देखो, मिल्क फ्लैट एंड SNF contribute 60% of the total solids of ice cream।
डेयरी इंग्रेडिएंट्स उसमें होल मिल्क, स्किम मिल्क, बटर ऑयल वगैरह वगैरह यूज होता है। अब यहाँ पे नॉन डेयरी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? सुगर, स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर, फ्लेवरिंग मटेरियल्स, वाटर एक्सेट्रा एंड एयर। अब if proper mixing is not there, then it will impact your ISC. If proper emulsification is not there, it will impact. Okay, so बहुत सारी चीजें आप लोग इसके डिफेक्ट्स में देखो। ये रहा हमारा मेन थिंग। ओके, so emulsifier fat global suspend in a mix, making fat will stick and stains like, okay, structure increases the weepability and firmness to the thing. Okay, अब यहाँ पे शुगर अगर ज्यादा होगा तो reduces the freezing point, extra sweetness sugar और corn syrup के लिए यूज होता है। ensure the process of water never freezes, preventing the ice cream from becoming a solid chunk of ice। अब देखो क्या होता है, when you are putting sugar, it will mix with water and it will form a complex। तो ये हम लोग को वर्ड पढ़ा था बाउंड वाटर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. So sugar will make sure that it will form a bound water with that and it will not allow the water to freeze। अगर वो freeze हो गया तो it is just like a ice block। okay, and it's very tough to consume ice block। okay, देखा होगा वो जब तक मेल्ट नहीं होगा आपका तो खाना टफ होता है कंपेयर टू आइसक्रीम। आइसक्रीम सॉफ्ट एंड easy to eat, correct? अरे Yes, हाँ sir. now Yes, high sir. corn syrup lowers the freezing point further than sugar, soft ice। Okay, so HFCs are used for this purpose only, to lower down the this। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, साइंटिफिक रीजन है योर, you might have studied in your chemistry classes or any therm मतलब बीटेक में थर्मल क्लासेस में कि higher amount of molecules, higher number of molecules results in lowering down of temperature, freezing temperature and increasing of your boiling point। पढ़ा होगा ना? Yes, Yes, sir. Yes. sir. Lowering in freezing point। तो high fructose corn syrups are generally used for those purpose। इसका पूरा साइंटिफिक रीजन है, वहां पर नहीं घुसे कि वो अलग ही डायमेंशन है। ठीक है, Yes, sir. नाउ स्टेबलाइजर, जेल फॉर्मेशन वगैरह। अब मैंने क्या बोला था, सबसे ज्यादा जिलेटिन यूज होता है आइसक्रीम में, थोड़ी देर पहले बोला था, राइट? ओके फाइन, नाउ मिल्क सब्स्टिट्यूट्स वगैरह वगैरह, these are basic। so now that part is also done। so you can do one thing, I have 20% battery in my laptop, so two mocks are two booster tests are released, you can give that by। अगर करंट आ गया तो we'll continue, or else we will continue it tomorrow in the morning classes। ठीक है, मॉर्निंग में फिर से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे 11-12 बजे। Okay, sir. Okay, but sir. I am here only, you give the test, we'll wait for the current। Okay, sir. so 4 tests are there till now: protein, fat, thermal processing and dairy। Sir, carbohydrate, protein, and thermal processing is visible. अरे dairy is also there, right? Yes, sir, we gave dairy. ठीक। सूरज लिंक शेयर हो गई ना? कार्ब्स की और इसकी एक सेकंड चेक कर। so I have ranks also and all the numbers with me। टोटल 9 लोगों ने दिया है। राजीव और शक्ति is there, I see।
शिखा ने सबमिट ही नहीं किया डेयरी, वाई गाइस? सर मेरा ऑटोमेटिक बंद हो गया था। सूरज एक काम कर, केदारे को बोल के प्रॉक्टरिंग हटा दे। सर आधे क्वेश्चन ही नहीं देख पाई मैं। हाँ सर बोल दे। प्रॉक्टरिंग हटा दे आगे वाले टेस्टों से।